And first of all, I want to thank you so much to everyone for the. I'm sort of what for the response I'm getting for the webinar for last yesterday's session regarding void data. I'm beyond overwhelmed, and thank you so much for the response you are showing and for the interest you are showing. And I'm yet to process all the like payments and everything. Yet to verify and send you confirmation email, everything. That will be done by tonight. Okay, don't worry. If you have paid for the webinar, yes, thank you, Ramesh. You have subscribed to the webinar, eager to learn. Yes, thank you. And if you have paid for the webinar, I'll be sending the confirmation email by tonight. Okay. If you have not paid, don't worry. It's like today's session is not about that or everything. Yes, I will be clearing some few doubts about the webinar. If you guys are having any doubt, because I wanted to clear a few points. Many people are having that doubt. Ki, one of the doubts is ki, how will we able to manage if we are not able to attend the live, because this is a 4-day session. 4 days are like very long period. Okay, I think nobody is able to sit for that much period. Some kind of works comes up. That's why I have provided the option of being the recording. Okay, I'll be recording every session. You guys know that I record even these conceptual sessions also. So I'll be recording every session, and that will be available to you guys. Okay, even if you are not able to listen properly during live webinar, or you want to revise any concept, that will be available there. You can watch that and revise your concepts. Okay, that's my job. Okay, see, once you have registered for the webinar, it's my job to make you perfect in reading void data and reading price action and make trades like using those two things. Okay, it's not your responsibility. That responsibility becomes mine, and I'll make sure of everything so that I can impart that knowledge to you. I'll make everything possible so that I can help you. The first doubt was that one. Second thing is ki what will be the language of webinar? Both Hindi and English will be there. I'll be conducting the webinar in both Hindi और English, दोनों ही लैंग्वेज में बात होगी. ठीक है. तो दोनों एक कंसेप्ट को बार बार समझाऊंगा मैं दोनों बार, बिकॉज ऐसा होगा कि मतलब क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक कि आई विल बी एबल टू टेक वेबिनार इन फैब एटलीस्ट. सो इसलिए आई वांट टू फिनिश बोथ, एंड द रिक्वायरमेंट इज फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. दोनों के ही लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है. सो आई विल बी कंडक्टिंग इन बोथ, and that's good for you also. If you know Hindi and English both, you will be able to revise those concepts simultaneously. 2 times I will be repeating everything. Jay is asking, I'm not able to attend half session on 5th, so how will you send recording? I will be you will get the recorded session, don't worry. You will get by by the night of the webinar, you will get the session. You will be able to watch that. Okay, if you can't download that session, okay, you will be able to watch it as many times as you can, as you do with Netflix or Amazon at all, Amazon Prime at all, like that. So that's the thing. And and I will be, even if you are not able to attend, I will be available in group and all. Okay, those who have attended know that, and I'll be available in group for clearing all your doubts. Okay, so let's proceed with today's session, result-based trades. Then we'll again talk. If you guys are having any doubt, I'll be clearing that. Okay, आज की बात करते हैं. अगर किसी को वेबिनार से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो फिर आप मुझसे बाद में पूछ लेना. चैट के बीच में, मतलब चैट में एक मैसेज छोड़ दो. मैं जब टाइम मिलेगा तो रिप्लाई, आई विल बी रिप्लाइंग दैट एंड एवरीथिंग. So let's talk about result based test. Okay, so everybody knows that whoever is trading, okay, कि जो भी ट्रेडिंग करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइस कि ट्रेडिंग इटसेल्फ इज अ वेरी रिस्की बिजनेस. ओके, आई हैव बीन एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट like from so many times. Okay, I have talked about this so many times that you guys must have been bored by now. Still I got some one of my follower gentleman was saying कि you can't promote trading and all. Like, see, this thing is कि ट्रेडिंग अगर आप अच्छे से करते हो, आप सीखते हो ट्रेडिंग में, आप इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम एंड नॉलेज पे, तो फिर आप नॉलेज पे टाइम और मनी एंड ऑल इन्वेस्ट करते हो, मार्केट को आप सीखने की कोशिश करते हो. ट्रेडिंग से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है. लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान दे के काम नहीं करोगे तो ट्रेडिंग से फिर गलत प्रोफेशन भी कोई नहीं है, बिकॉज एक गलती यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस करा सकती है. ठीक है, सो उसका ही सबसे प्राइम एग्जांपल है रिजल्ट बेस्ड ट्रेड. ओके, द लाइक द शार्पेस्ट kind of trading, if I can say, is result based trade. Okay,
क्योंकि यहाँ पे आर या पार वाली कहानी होती है, ठीक है। कभी भी मार्केट में आपने देखा होगा, जो लोग, बहुत से लोग आप में से वेटरन हैं, देर इज राजीव जी, आई नो हिम, ही इज लाइक इन मार्केट फ्रॉम सो मच टाइम, ओके, एंड एवरीथिंग आई नो अबाउट यू गाइस। सो उसमें आप लोग को पता ही है रिजल्ट के बाद क्या होता है, ठीक है। रिजल्ट के बाद एकदम आर्य पार की कहानी होती है। 4 या 5% अगले दिन ऊपर होता है, या फिर उसके बाद जो हो सकता है 4 या 5%, 10% के लिए डाउन हो जाए मार्केट, आपका जो भी स्टॉक है वो। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी डिसेबल annotations फ्रॉम, ओके ओके ओके, so I've disabled the annotations so there won't be any disturbance from anyone. So what happens कि रिजल्ट के बाद जो है स्टॉक्स मूव करते हैं। सो अब उसमें दो चीजें आती हैं, ठीक है। कि कई बार तो ऐसा होता है कि एक्चुअली में जो है स्टॉक के रिजल्ट अच्छे होते हैं या खराब होते हैं, हम तो उसे कारण से स्टॉक मूव करता है। बहुत से जो बड़े स्टॉक्स होते हैं जिनमें एक्चुअली में लोगों का इंटरेस्ट होता है और जिनमें रिटेल पार्टिसिपेशन भी इतना ज़्यादा होता है कि उसमें ऑपरेटर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें वो चीज़ें अप्लाई होती है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि रिजल्ट अफेक्ट्स द move next day, but the most important thing which move affect the move of stock is the operator position, okay, because the I have told it in my previous webinar also, why based webinar, ki like the people with big pockets, the operators, okay, they operate the news related to anything, okay, they operate the news, they know the news in advance. In fact, so many news are planted by them, so many moves of different kind of stocks are, they know well in advance, okay, that's why they take position in that stocks and they make money, they invest lot of money। उसके बाद जो है आप वो स्टॉक को मूव कराते हैं, ओके, उनको सब चीजें पहले से पता होती है। उसके बाद वो पैसे का और नॉलेज का यूज करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो इसमें भी यही चीज होती है कि दे नो द रिजल्ट इन एडवांस, okay, they make their position in advance, and by advance I am not saying कि एक दिन या 2 दिन, जैसे हम लोग हैं एक दिन 2 दिन पहले पोजीशन बनाते हैं, वो 1 डेढ़ महीने पहले से पोजीशन बनाना चालू कर देते हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि रिजल्ट के में किस तरीके का इंडिकेशन, या तो उनका एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज या आई डोंट नो वट एवर, बट दिस हैपन्स, ओके। सो दे the only way so that you can capture the move is by observing the operator's activity, okay। So if you can observe the operator's activity, if you can know the positioning, what kind of positioning they are taking, and if you can decipher that, then you will be able to catch the crazy moves which stocks give after the result. Okay. So I'll be talking about some examples here. Before that, let me tell you how can we, what are the methods for taking result based trade, okay. There are 2-3 kinds of methods. First of all, let me discuss about volatility, okay. There is a thing called implied volatility. What does this mean? Implied volatility in true layman's terms, ठीक है, एकदम simple शब्दों में बोलूं तो implied volatility is nothing but the market perception, the perception of overall market about any news or anything, okay. The result is in itself is a news, and the perception of market participants about the result is deciphered in form of IV, implied volatility, okay. This is the volatility which is implied by the market participant. The thing ki no, I am not sharing any PPT, I am writing over like a blank PPT. You guys are able to see my writings here, the things which I am writing in my not so good handwriting. Are you able to see that this I have written something here? Okay, you guys can't hear me. Okay, yeah, are you able to hear me now? Yes, yes, yes. Okay, thank you. Now, yes, red markers. Yes, that's the only thing I'll be using now, because I did not get the time to prepare the PPTs, and and mostly I'll be using the live websites. Okay,
thing which I have to show is from like 2-3 things I have to show that will be available in the website itself. We will go to that in a moment, but first of all, so let's talk about this thing. I was talking about IV, okay, implied volatility. So results are the event during which the IV increases, okay, and after the results IV decreases. That's a given fact because everybody knows that चाहे रिजल्ट किसी भी डायरेक्शन में है, वट एवर डायरेक्शन द रिजल्ट, द स्टॉक्स में एज्यूम कि ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है, अगले दिन बहुत ज्यादा गैप अप खुले, बहुत ज्यादा नीचे खुले, कुछ भी हो, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बिफोर द रिजल्ट इट गेट्स इंक्रीज्ड एंड आफ्टर द रिजल्ट इट गेट्स डिक्रीज. ओके, देयर इज अ टर्म फॉर दैट, this which is wall crash. Okay, we use wall crash, that is volatility crash, or like everything. There are so many terms related to this. Okay, that's not the issue here. The thing is here, you guys also may be knowing that कि you guys may have observed कि रिजल्ट के दिन अगर आप गलत ट्रेड ले लो, ठीक है, सपोज आज आप अगर नॉर्मल दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हो, अगले दिन आपके अगेंस्ट में पोजीशन ओपन होता है, तो फिर आपको उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है. आपने 100 रुपये का मान लो कोई कॉल खरीदा, अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर आप जो है 50-60 रुपये के आसपास में होगा. लेकिन वही चीज़ आप कोई स्टॉक ऑप्शन में करते हो और रिजल्ट अगले दिन, रिजल्ट के टाइम पे, मतलब रिजल्ट के बाद वो गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर वो 10-20 ऐसे में पहुंच जाता है. ओके, 10 रुपये, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, बहुत ज़्यादा उसमें होता है, तो उसमें लॉस होता है आपके प्रीमियम का. तो उसके पीछे एक रीजन होती है, वो रीजन ये होती है कि यस, इन्फोसिस इज परफेक्ट एग्जांपल, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस टुडे. सो उसके पीछे एक रीजन होता है, वो ये होता है कि ऑप्शन के प्राइस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस ना दिस सो मेनी टाइम्स, कि आप जब भी ऑप्शन में ट्रेड करो ना, इस बात का ध्यान रखना, ऑप्शन इज नॉट लाइक सम स्टॉक्स और एनीथिंग कि अभी खरीद लिया, 10 में खरीद लिया, 11 में बेच दिया तो 1 रुपये प्रॉफिट. यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब मल्टी डायमेंशनल उसका प्राइसिंग फैक्टर होता है, बहुत सारी चीजों पे वो डिपेंड करता है. द प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स. वन ऑफ देम इज डेल्टा, ठीक है. डेल्टा इज नथिंग बट डायरेक्शन. अगर आपको लगता है कि गैप अप ओपन होगा और ओपन होता है, तो फिर यू आर गुड विद द डेल्टा. बट देयर इज थीटा, तो है ही, थीटा का भी उतना रोल नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट बेस्ड ट्रेड जो है इमीडिएटली एंट्री एंड एग्जिट होती है उसमें, स्पेशली एज एन ऑप्शन बायर, तो थीटा का उतना ज्यादा रोल नहीं आ पाता. लेकिन द टर्म आईवी वॉलेटिलिटी जो रहती है, वॉल क्रैश होता है, वॉलेटिलिटी क्रैश होती है. सो इवन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में ओपन होता है, लेकिन वॉलेटिलिटी क्रैश होती है, उसकी वजह से आपके ऑप्शन की प्राइस कम हो जाती है, ठीक है. there's a very good example regarding this in Zerodha. I'll be sharing that maybe today or maybe in another session, कि मार्केट एकदम आपके अपोजिट में चला जाए, ठीक है, तो भी अगर वॉलेटिलिटी की यूज करके आप उसका प्रॉफिट लेते, बहुत वो एक रेयर टू द रेयर एग्जांपल है. सॉरी नहीं, अभी यहाँ पे सिचुएशन है कि अगर मार्केट आपके फेवर में भी चला गया, लेकिन वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन की प्राइस डिक्रीज होगी. तो एज एन ऑप्शन बायर आपको जो है काफी नुकसान होता है इस वजह से. ओके, सो इसलिए अगर आप रिजल्ट बेस्ड ट्रेड करते हो, तो अगले दिन आपको जो है दो चीजों का फेवर होना चाहिए. तो डेल्टा भी आपके फेवर में होना चाहिए, ठीक है. डेल्टा यानी कि आपका डायरेक्शन बहुत सही होना चाहिए, साथ के साथ जो है आपका वॉलेटिलिटी भी आपके फेवर में, जो कि नहीं होती ऑब्वियसली, बिकॉज रिजल्ट के बाद वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती ही होती है, ठीक है. तो वॉलेटिलिटी तो आपके अगेंस्ट में रहेगी ही रहेगी, आईवी क्रैश होगा ही होगा. सिर्फ आप डेल्टा, आप आपके ऊपर में है कि आप डेल्टा कितना अच्छा कैप्चर कर पाते हो. अगर आप डेल्टा अच्छे से कैप्चर कर पाते हो, तो आप रिजल्ट के बाद बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो. अगर नहीं, तो फिर एज एन ऑप्शन बायर आपके लिए खतरनाक सिचुएशन होती है, ठीक है, रिजल्ट बेस्ड ट्रेड. सो लेट मी डिस्कस इन डिटेल कि क्या चीजें होती हैं, ठीक है. सी द थिंग इज गाइस कि अगर इवन आप लोग ट्रेड नहीं ले पाओगे या आपको नहीं वो होगा, स्टिल आपको पता होना चाहिए कि चीजें चल क्या रही है मार्केट में, ठीक है. उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना. ये चीजें हो सकता है आपको पहले से पता हो, बिकॉज आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि ये कोई मेरे द्वारा, मतलब मैं आई हैव जनरेटेड दिस कॉन्सेप्ट और लाइक दिस, ठीक है. स्पेशली रिजल्ट बेस्ड ट्रेड में जो चीजें हैं, उसमें कुछ ही चीजें मैंने वो की है. You are too fast in Hindi, unable to follow. That is the main like flavor of Hindi ना, कि सारे इमोशन एक साथ फ्लो हो करके आ जाते हैं हिंदी में, आसानी से मैं एक साथ बोल सकता हूँ, तो इसलिए उसमें फील आता है. एनीवेज, आई वाज सेइंग कि लेट मी rephrase this in English, कि there is a thing called delta. Okay, if you are good with the direction, then delta is in your favor. But after the results, volatility will increase. That will not be in your favor. Okay, if you are an option buyer, we are talking here about buyer's perspective. I will be talking about seller's perspective in a while. Okay, so as far as the buyers are concerned, that IV
will be against them. Okay, the volatility will decrease after the result. That's a given fact. Nobody can deny that. Every stock, the volatility of every stock, every instrument decreases after its result. Okay, result is an event, and after the event the volatility decreases. But if you are good with the delta, if you are good with the directions, and if you are able to predict what will be the move of the stock, then you can capture good amount of money in option buying also. Okay, now there are two strategies related to this. First one is, I can't hear you. No issues. If anybody has any kind of problem, you can tell. Okay, it's not like everybody, we have to take everybody along with us. Okay, so yeah, that was like I was too fast in Hindi. No issues. Yeah, no problem. No issues, guys. I will repeat. Don't don't worry. Focus on the things here. Okay, if you guys don't know this from, then it's better to know. Okay, these things will help you. So let's talk about what is. I have talked about IV, and there is delta. Other Greeks don't have that much rule in result based trade. Okay, now what happens? Ki how the market reacts to the result. Okay, there is thing. अगर देखो ये होता है कि अगर जो है रिजल्ट मान लो, मार्केट के एंटिसिपेशन पे डिपेंड करता है. ओके, मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, और जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो भी, उनके एंटिसिपेशन पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे मूव करेगा रिजल्ट के बाद. सपोज मार्केट को ये लगता है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, रिजल्ट शुड बी गुड. ओके, and the result does not comes good, not market is expecting a very good result, but the result comes only good. Okay, the market will fall, definitely the stock will fall. If the market is expecting bad results and the result comes as good, market will rise. Okay, if the market is expecting good result still the results are bad, then the market, it's not like the market will fall or anything. Okay, the move after the result does not depends on what the result actually is. Okay, because the result are like those kind of thing कि उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं. ठीक है, in the result you can compare the result of quarter one with the current quarter with previous quarter, current quarter with quarter of previous year, like those things. So it's not like कि अभी आप एक एस्पेक्ट को देख करके, हो सकता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ गए हों तो आप उसको खराब रिजल्ट बोल दो. हो सकता है आप पीयर से कंपेरिजन करो तो फिर बुरा रिजल्ट आया. हो सकता है कि आपका जो है डेप्थ बढ़ गया है तो खराब रिजल्ट बोल लो. तो इसलिए बहुत सारी चीजें रहती है, हर एक एस्पेक्ट को एक साथ आप रीड नहीं कर सकते. ठीक है, एज फार एज वी आर कंसर्न, वी रिटेल ट्रेडर्स कंसर्न, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द रिजल्ट की रिजल्ट अच्छा है या बुरा है. ठीक है, इवन मार्केट इज नॉट कंसर्न अबाउट द रिजल्ट की रिजल्ट अच्छा है कि बुरा है. ठीक है, मार्केट इज ऑल द एनीथिंग दैट मार्केट कंसर्न्स इज कि रिजल्ट उन्होंने कैसा एक्सपेक्ट किया था. ठीक है, अगर रिजल्ट उनके हिसाब से आ रहा है तो मार्केट मूव नहीं करेगा. रिजल्ट उनके अगेंस्ट में आता है, मतलब उन्होंने जैसा भी सोचा था उससे अपोजिट कुछ आता है, तो मार्केट बहुत ज्यादा मूव करेगा. ओके, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे. ठीक है, दैट इज द थिंग. एंड उस वक्त वो थोड़ी देर के लिए बढ़ेंगे, फिर उसका जैसे ही तुरंत कूल ऑफ होगा उसका तुरंत कम हो जाएंगे. ओके, सो द थिंग इज there are two methods to capture result based trade. Okay, one is buy option selling, the second one is buy option buying. Now the first one, let's talk about option selling first. Okay, what happens कि option selling में तो बहुत आसान है. आप लोगों को पता है कि option sellers जो रहते हैं मेनली उनका डेल्टा न्यूट्रल करने की कोशिश में रहते हैं वो लोग. ठीक है, तो दो चीजें होती हैं. डेल्टा वो लोग न्यूट्रल कर लेते हैं, दोनों ही तरह के स्ट्राइक्स को बेच देते हैं उन लोग, पुट एंड कॉल बोथ को. सो द डेल्टा इज न्यूट्रल फॉर देम, बट to make delta neutral even after the result, that's a tough task. Okay, that requires a lot of adjustment and all. But the thing is कि आई भी उनके फेवर में काम करता है. ठीक है, वॉल क्रैश वो लोग कैप्चर करना चाहते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता है तो उसके 4-5 दिन पहले से पोजीशन बनाना. सी रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, रिजल्ट को कहाँ चेक करना होता है, और रिजल्ट का शेड्यूल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. उसके लिए वेबसाइट्स हैं, फ्रीली अवेलेबल है, तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. पहले ये कंसेप्ट समझ लेते हैं. ठीक है, तो ये होता है कि वॉलेटिलिटी जो है ऑब्वियसली रिजल्ट के पहले इंक्रीज होती है. ठीक है, और रिजल्ट के बाद डिक्रीज होती है. तो जैसे जैसे वो रिजल्ट, मतलब उनको वॉलेटिलिटी का अगर उनको फायदा उठाना है तो वो अपनी पोजीशन पहले ही बनाना चालू कर देते हैं. ठीक है, रिजल्ट के पहले
वो अपना पोजीशन बनाना चालू कर देते हैं, यहाँ पे पुट एंड कॉल वो सेल करना चालू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, अगले दिन अचानक से जो है पुट और कॉल दोनों की वैल्यू कम होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो वो फिर उनको जो भी प्रॉफिट होता है वो उसको कैप्चर करके निकल जाते हैं, वॉल क्रैश का फायदा उठाते हैं। और ये उनका लाइक दैट इज द मेन मेथड ऑफ लाइक रिजल्ट बेस्ड ट्रेड, ठीक है। इसके अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, इसके लिए आपको जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं मेनली, उनके उनसे देखना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज ए यूट्यूब में भी अवेलेबल है स्ट्रेटेजीज, इसमें कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। नाउ कम्स की ऑप्शन बायर कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। ऑप्शन बायर का एक तरीका ये है कि सी आप लोग देखना, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का जो आपको अगर ऑब्जर्व करना है ना, तो इस पूरे रिजल्ट सेशन में, अभी रिजल्ट सेशन चालू हो चुका है, टीसीएस इन्फी विप्रो का रिजल्ट आ चुका है, माइंट्री का भी आज शाम को आया है, और कल जो है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा, उसके एक दिन पहले डेल्टा कॉर्प का रिजल्ट आया था। तो ये सारे अभी इस वीक की ये सारे रिजल्ट्स हैं। तो आप देखना इनकी जो ऑप्शन प्राइसिंग है, पहले क्या थी, रिजल्ट के पहले क्या थी, रिजल्ट के बाद क्या हुए, ठीक है। आप स्ट्रैडल, सॉरी गाइस, आप स्ट्रैडल बनाते या स्ट्रैंगल बनाते हैं, तो किस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलता है, कितना प्रीमियम डीके होता है, कितना हम कैप्चर कर पाते हैं, दीज ऑल थिंग्स आर लाइक जस्ट टेक वन डायरी एंड नोट एवरीथिंग, लाइक हर एक आपने खुद के हाथों से आप लिखिए, आपको आराम समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रॉफिट उसमें बना रहता है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट आता है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, ठीक है। और उसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी रिजल्ट के सेशन में खुद ही टेस्ट करो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आप ऑप्शन सेलिंग में जाते हो, तो ये चीजें रहेंगी। आपको डायरेक्शन से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन सही भी होता है तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। और दीज आर द थिंग कि रिजल्ट बेस्ड सेशन में अगर आप काम करते हो, रिजल्ट बेस्ड ट्रेड पे आप काम करते हो एज एन ऑप्शन सेलर, तो आपको पूरे बहुत सारे रिजल्ट्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ही मेजर रिजल्ट को कैप्चर करना पड़ेगा, तब जाके आप एक साइजेबल प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, ठीक है। यू कांट लाइक कि आज मैंने इन्फी में ये काम कर लिया और कल मैं विप्रो में नहीं करूंगा, मतलब माइंट्री में नहीं करूंगा, इसलिए आपको ऑन एन एवरेज देखना पड़ेगा, तो आप फिर एक अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट बन सकता है। बट दैट्स नॉट व्हाट आई डू, ठीक है। व्हाट आई डू इज लाइक आई एम एन ऑप्शन बायर and I'm a directional option buyer, okay, because option buyers are always directional, that's not a good term to say. Option buyers are always directional, we play on direction, okay, we thrive on direction. So let's talk about what an option buyer can do, okay. There are two three things. First of all, uh, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको समझिए कि अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है, ठीक है, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, आप जस्ट अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर उतना ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाए हो आप, ठीक है, और और आप मार्केट में हो, तो अभी तो थोड़े दिन आप रिजल्ट बेस्ड ट्रेड से दूर रहो, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट में ओपन हो गया पोजीशन, तो आपका जितना कैपिटल है वो चला जाएगा। आपने जितने का भी ऑप्शन बाय किया 10,000 15,000 का, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके फेवर में आता है तो फिर इमीडिएटली आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, दैट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको लॉस पहले समझ के चलना है, ठीक है, लॉस का मिनिमाइजेशन पहले होना चाहिए। तो अगर अकाउंट साइज छोटा है तो एक पेमेंट नहीं करना, ठीक है, रिजल्ट बेस्ड ट्रेड का। स्टिल इफ यू वांट टू डू, ठीक है, आप अगर रिस्क लेना ही चाहते हो रिजल्ट बेस्ड ट्रेड में, तो आपको कुछ क्या करना है, ठीक है, मतलब जो एज एन ऑप्शन बायर आपके लिए जो सेफ थिंग टू डू होगा, वो होगा कि आप, देखिए मैं ये हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि ठीक है, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स माय व्यू, कि व्हाट हैपन, ठीक है, कि आप देखो कोई स्टॉक अगले दिन मान लो 5% गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मान लो कोई सा भी स्टॉक है, जैसे ले लेते हैं सन फार्मा, ठीक है। वैसे सन फार्मा का रिजल्ट मार्केट और के बीच में आता है, बट स्टिल लेट्स टेक दिस वन फॉर एग्जांपल। सो ये होता है मान लो कोई स्टॉक अगले दिन 5% गैप अप ओपन है, ठीक है। तो अब आपको इसका दुख हो रहा है कि आपने उस 5% कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है, बिकॉज आपको रिजल्ट बेस्ड ट्रेड नहीं लिया उस आपने, ठीक है। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है ना, आपके सामने कोई स्टॉक मूव करते, जैसे आज टाटा स्टील 6% मूव किया, ठीक है, कल कोई और स्टॉक मूव करा था, एयू बैंक मूव किया, फेडरल बैंक, बहुत सारे स्टॉक्स मूव करते हैं, हम उनको मार्केट आवर में रह के हमारे सामने चीजें मूव कर जाती है, उनको कैप्चर नहीं कर पाते। तो जो चीजें हमारे आगे मतलब दो थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, दो आर थिंग्स आर हैपनिंग ओवरनाइट, तो उनको कितना ही हम कैप्चर कर पाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और अगर कैप्चर कर लिए तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर लॉस हो गया तो फिर हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओवरनाइट कोई असल काम नहीं करता until unless you are option seller and you are dealing with option strategies. So what happens,
अगर आपको ओवरनाइट किसी चीज का प्रॉफिट लेना ही है तो उसके लिए फिर आपका कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, आप अपना रिस्क होना चाहिए। जैसे आपके पास सपोज 10 लाख का कैपिटल है, तो उसमें आप 10,000 20,000 का ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो उसमें नो इश्यूज देयर, ठीक है। अगर वो इवन आपका पूरा लॉस भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर 100 ट्रेड लेते हो रिजल्ट बेस्ड, तो उसमें से आपके 60-70 सही हो जाएंगे, अगर आप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो। अपने वेबिनार में मैं रिजल्ट बेस्ड ट्रेड के लिए अलग से चेकलिस्ट बना के बताता हूँ आपको कि 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। उन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो आप 80-90% टाइम में आपका रिजल्ट आपके फेवर में ही काम करता है रिजल्ट बेस्ड ट्रेड। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस कि ऑप्शन बायर है, ठीक है, और अभी बहुत ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है, बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो आप क्या करें, आप जो है हर एक रिजल्ट बेस्ड ट्रेड पे काम ना करें, रिजल्ट पे हर एक रिजल्ट को आप नहीं कैप्चर करने की कोशिश करें। आप जो है सिर्फ उन रिजल्ट पे ध्यान देना जो रिजल्ट ड्यूरिंग मार्केट आवर आते हैं, ठीक है। रिजल्ट दो टाइप के होते हैं, एक जो मार्केट आवर्स में आते हैं, एक जो आफ्टर मार्केट आवर आते हैं, ठीक है, यानी कि मार्केट बंद होने के बाद आफ्टर 3:30 PM। ओके, सो व्हाट हैपेंस कि जो मार्केट आवर्स के बीच में आते हैं ना रिजल्ट, उनको आप बिल्कुल आसानी से ट्रैक कर सकते हो, उनके बाद किस तरीके का मूवमेंट आता है उसको आप देख सकते हो, और फिर इमिडिएटली आपको पोजीशन लेनी है। इमिडिएटली आप पोजीशन लेकर के फिर आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। वहां पे आपका एसएल भी काम करेगा, आपने एसएल लगाया, अगर आपके फेवर में नहीं हुआ मूव, आपको लगता है कि वो अगेंस्ट में चला गया, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप कैपिटल तो बच जाएगा, है ना। आप जो भी एसएल लेके चलोगे छोटा मोटा या जो भी जिस टाइप का, जैसे आज का जो एसएल था एसएल की बात आ रही है, तो फिर आज का जो एसएल था जो बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड दिया था, उसमें बहुत छोटा एसएल था, ठीक है, मतलब कंपेरेटिवली 6, बहुत जब दिया था तब तो बहुत बड़ा था, लाइक 20 रुपीज का एसएल था, लेकिन मेरा मन तो यही था कि मैं 55 या 50 का भी एसएल दे दूं मुझे, क्योंकि पूरा आइडिया लग गया था कि वहां से बैंक निफ्टी अब रिटर्न मारने वाला है, तो वो ऑप्शन तो उसका प्राइस तो अच्छा खासा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा उसमें बफर की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। मुश्किल से मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 55 रुपीज का एसएल देना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा आउटरेजियस हो जाता है आप लोग, तो इसलिए मैंने 40 का एक सेफ मार्जिन लेकर के रिजल्ट दिया था, क्योंकि अगर मैं 55 का देता तो आप लोग क्वांटिटी बहुत ज्यादा रख लेते, फिर उसको मैनेज करने में दिक्कत हो जाती, इसलिए। एनीवेज, सो लेट्स टॉक अबाउट द एसएल हियर। तो अगर मार्केट आवर्स में रिजल्ट आता है तो आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर दोज रिजल्ट जो जो मार्केट आवर्स में आते हैं, उन रिजल्ट को आप कैप्चर करना, तो फिर आप आसानी से प्रॉफिट उसमें बना सकते हो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीडे, रिजल्ट के बाद जो है यूनिडायरेक्शनल मूव आता है, ठीक है। अगर मार्केट आवर्स में रिजल्ट आता है तो फिर वो यूनिडायरेक्शनल मूव आएगा, अच्छा एक मूव आएगा, आप उसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। अब और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपको आफ्टर मार्केट आवर का रिजल्ट कैप्चर करना है, तो फिर आपका डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आप नॉर्मली मतलब सिंपल कंसेप्ट से काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिर्फ ये सोचोगे कि नहीं, जैसे कई लोग रहते हैं डे लो के पास में क्लोजिंग दी है तो अगले दिन ऊपर, नहीं, इतना आसान नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं स्टॉक्स को, क्योंकि अगले दिन हजारों करोड़ का ऊपर नीचे होने वाला रहता है, तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं। आप सिर्फ प्राइस एक्शन या सिर्फ जस्ट क्लोजिंग या डायरेक्शन देख करके मत बाय या सेल करना किसी भी स्टॉक को, अपने एंटिसिपेशन से मत करना, किसी के बोलने पे भी ये मत सोचना कि नहीं लग रहा है कि इन्फी का रिजल्ट अच्छा आएगा या विप्रो का रिजल्ट कम आएगा, किसी भी न्यूज मीडिया आउटलेट के बारे में मत सोच सुनना। आप प्राइस एक्शन देखो और उसके साथ में ओआई डेटा का कंफर्मेशन लो, ठीक है। आप ये देखो कि बड़े प्लेयर जो हैं किस तरीके से पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया ओआई डेटा का वेबिनार अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देखिए, इवन जो लोग इसको यूट्यूब में देखने वाले हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ओआई डेटा का वेबिनार यूट्यूब में ही मेरे चैनल पर अवेलेबल है, इवन इन हिंदी इन इंग्लिश बोथ, तो उसको जाकर के देखिए, आपको क्लियरिटी मिलेगी। ओआई डेटा जो बड़े प्लेयर हैं वो ओपन इंटरेस्ट में ही पोजीशन, उनका पोजीशन जो है ओपन इंटरेस्ट में दिख जाता है। तो अगर आप बड़े प्लेयर्स का पोजीशन बनाते हुए देख सको कि वो किस डायरेक्शन में अपना पोजीशन सेट कर रहे हैं, तो फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आम जो स्टॉक्स हैं वो किस डायरेक्शन में ओपन होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन सेंस अच्छे से आ जाता है, ठीक है, आपका मतलब 10 में से 8 बार जो है आपका डायरेक्शन सही हो रहा है, तो फिर आप जो है रिजल्ट बेस्ड ट्रेड पे जाओ, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, है ना, उसमें नो डिनाइंग इज दैट। एंड बेस्ट ऑप्शन लाइक जितने भी इवन ऑप्शन सेलिंग, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग आप करोगे, या फिर आप इवन वॉलेटिलिटी का यूज करके भी ऑप्शन बाइंग भी करोगे, तो मतलब आप डेल्टा न्यूट्रल करने की कोशिश करोगे इन ऑप्शन बाइंग, ठीक है। कई लोग की ये स्ट्रेटेजी भी रहती है, कॉल एंड पुट दोनों बाय कर लेते हैं कि दोनों में से एक तो जो है हमें प्रॉफिट देगा और एक लॉस दे देगा, तो जो लॉस होगा उसको ये इसका प्रॉफिट कवर कर लेगा और ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। वो चीज अक्सर काम नहीं करती, क्योंकि वॉलेटिलिटी क्रैश हो जाती है, तो इसलिए आपका जो जिसमें प्रॉफिट भी मिलता है उसमें उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता जितना उसमें लॉस रहता है दूसरे ऑप्शन में। सो दैट्स एन टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप डेल्टा के डायरेक्शन डेल्टा के डायरेक्शन में जाते हो
और अपना रिस्क मैनेज करके चलते हो, ठीक है, आप उतने ही अमाउंट का ऑप्शन बाय करते हो जितना आप लूज कर सकते हो, तो फिर आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन सेंस के साथ में ये रिजल्ट बेस्ड ट्रेड्स का अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, सो दैट्स द थिंग विच आई वांटेड टू टेल। ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट है रिजल्ट बेस्ड ट्रेड के वो यही है। मैंने देखा है बहुत लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर मतलब इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, इतनी आसानी से नहीं करें आप। चाहे इवन आप स्टॉक्स में बाय कर रहे हो, ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि नहीं इन्फोसिस कल गैप अप ओपन होगा तो आज स्टॉक में कैश में बाय कर देता हूँ, तो भी आपको रिस्क तो है ही उसमें, है ना। सो योर मनी इज योर मनी। सो इवन इफ यू आर डूइंग इन फ्यूचर्स ऑल्सो देयर इज रिस्क। डेल्टा डायरेक्शन सेंस आपको सही रखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स आई वांट टू टेल यू कि रिजल्ट चेक कहाँ से करना है, रिजल्ट आपको पहले से पता कैसे चलेगा कब रिजल्ट आने वाला है, वो सारी चीजें। एक बेसिक कंसेप्ट, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो रिजल्ट बेस्ड ट्रेड लेने के 4 चेकलिस्ट होते हैं, 4 चीजों को चेक करना होता है, ठीक है। और वो अलग अलग चीजें हैं, है ना, उनके बारे में डिटेल में वेबिनार में डिस्कस करेंगे, टाइम लगता है उन चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए। एक उनमें से जो चीज है वो एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि बहुत ज्यादा बाकी चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से आपको एक आइडिया लग जाता है कि उस स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट आने वाला है कि नहीं आने वाला है। इस चीज को देखने का क्या मेथड है मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले डिस्कस करते हैं कि कहाँ देखा जाता है रिजल्ट, और पहले से शेड्यूलिंग कहाँ पे होती है। ओके, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट so here it is. Okay, so here it is. ये जो है, आई एम सॉरी फॉर द constant coughing and guys, I'm really sorry for that. That's because I am having some cold and so this is the website, guys. Okay, you must be knowing about this website if you are an option trader. This is a, like, just a second. This is a very useful website for everyone. Okay, mainly option sellers use this. This is Opstra, none other than. And if you go to Opstra, you will be able to see. Just open the options thing, then you will be able to see this thing, result calendar. Okay, just click on this, and you will be able to see this page. Okay, are you guys able to see this my screen? You guys are able to see my screen? ओके ओके, थैंक यू। सो जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन रहता है कि 11 तारीख को क्या पोजीशनिंग थी, ठीक है। 11 तारीख को जैसे पोजीशनिंग इन द सेंस कि क्या रिजल्ट आने वाला था, तो ये जैसे 18 मतलब जो डेल्टा कॉर्प का रिजल्ट है वो इसमें पहले से था कि इसमें ये चीज़ बताई रहती है कि पहले जो है रिजल्ट किस तरीके का है, मतलब कब आया था, सॉरी किस तरीके का नहीं, किस तरीके का आया था, वो आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा, उस पर भी चलेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि जो है कब आया था रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है डेल्टा कॉर्प का, वो जैसे पिछले साल 2021 का सेकेंड क्वार्टर में आया था, वो इसमें आया था, फोर्थ क्वार्टर होना चाहिए था ना, एनीवेज व्हाटएवर। तो जो पिछला रिजल्ट आया था वो ये आया था 11 अक्टूबर 2021 को, वो आया था आपका 6:28 में, ठीक है, शाम को। तो ये आफ्टर मार्केट आवर्स आया है ना, तो 3:30 बजे के बाद जब भी आया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पता चल जाता है कि हाँ मार्केट आवर के बाद आया था। तो इस साल भी वही चीज़ हुई, इस साल 11 जनवरी 2022 को आया 6 बजे के अराउंड पे शाम को। सिमिलरली इसमें दिया रहता है टीसीएस का, आप देख सकते हो कब आया था, इतने बजे आया था, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ मार्केट आवर्स के बाद आया था। Yeah, it may happen. Yes, you are right, Raj. And I don't know the nitty-gritties, and I don't care about that also. यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फी का रिजल्ट है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एंड ये सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कि पहले जैसे इन्फी का आप देख सकते हो 4 बजे के राउंड पे आता है रिजल्ट। जनरली जो आईटी कंपनीज होती हैं वो मार्केट आवर्स के बाद ही डिक्लेयर करती है अपना। माइंट्री का भी पहले जो आया था, अब ये 13 जनवरी को 3:50 में आ चुका है माइंट्री का रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी एस का आएगा, उसके बाद आई थिंक HDFC बैंक का है अपना, ये सैटरडे को है।
सो एचडीएफसी बैंक का प्रीवियस ईयर का रिजल्ट, प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट जाके देखना, आपको बहुत मतलब याद भी होगा बहुत से लोगों को। रिजल्ट अच्छा आया था, अगले दिन गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जैसे ही गैप अप हुआ उसके बाद इमीडिएटली स्टॉक नीचे आ गया रिजल्ट, मतलब रिजल्ट के बाद। तो ये चीजें रहती है, जो लोग बहुत पहले से जिन्होंने पोजीशन बना के रखा है ना, तो वो रिजल्ट को एज ए मीडियम यूज कर लेते हैं। ठीक है, कि रिजल्ट जैसे ही आएगा हम अपनी क्वांटिटी अनलोड करेंगे। ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट अगर आता है, रिटेलर ये सोचता है कि स्टॉक जो है अब अच्छा ऊपर जाएगा करके, तो वो बाय करता है, तो अगले दिन जो है वहाँ पे ऑपरेटर जो है अपनी क्वांटिटी अनलोड करते हैं, तो अचानक से प्राइस नीचे आ जाता है, आप स्टक हो जाते हो। ठीक है, और अगर आप फ्यूचर या ऑप्शन में प्राइसिंग पोजीशन लेके रखे हो, तो फिर तो आप बिल्कुल ही पूरी तरह से स्टक हो जाओगे। ठीक है, आपने फिर क्योंकि आईवी भी डिक्रीज हो रहा है, आपका डायरेक्शन भी सब कुछ सही होते हुए भी आपका डायरेक्शन अलग हो गया, तो फिर वो उसमें बहुत लॉस हो जाता है। तो ये चीजें रहती है, इसलिए वो लोग क्वांटिटी अनलोड करने की भी कोशिश करते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना। आप इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे तो फिर आप रिजल्ट बेस्ड ट्रेड में आप अच्छे से प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, आप जो है लेट्स टॉक अबाउट जो चीजें मैं बोल रहा था, मार्केट का परसेप्शन जो चीज होती है, उसके हिसाब से अगर रिजल्ट आता है तो क्या चीजें होती है, जैसे आप ये देखो। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे यू कैन सी। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये तो आज का है, इसको छोड़ देते हैं। पिछले रिजल्ट की बात करते हैं माइंट्री में। जो सरप्राइज फैक्टर जो रहता है, ये यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में बताता है आपको। सरप्राइज फैक्टर वो रहता है कि कितने परसेंट से, मतलब जो उनका एक्सपेक्टेशन था और जो रिपोर्टेड हुआ और एक्सपेक्टेशन जो था उस पर कितना डिफरेंस था, उस हिसाब से एक सरप्राइज फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ये बाद में कैलकुलेट, ये सारी चीजें रिजल्ट के बाद कैलकुलेट होती हैं, तो इसलिए हमें कोई खास इनसे फायदा होता नहीं है। ठीक है, इसलिए लेकिन ये चीजें हैं, इन चीजों से अफेक्ट होता है। आप सारे चार्ट्स उठा के देखना, ये फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है, आप उठा उठा के देखना, आपको पता चलेगा सरप्राइज फैक्टर जो था। और उसकी वजह से अगर अच्छा सरप्राइज फैक्टर था तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाता है, अगर नहीं था बहुत ज्यादा सरप्राइज फैक्टर तो प्राइस नीचे आता है, ये चीजें रहती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वेयर टू टेक सी रिजल्ट्स इन लाइव मार्केट आवर्स। ओके, सो इसके लिए हमें यहाँ पे, ओके लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। यहाँ पे आपको वो करना है, बीएसई की साइट पे जाना है, वहाँ पे आप वो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का पेज है, उसको आप क्लिक करोगे। ठीक है, आप गूगल सर्च करना बीएसई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, तो वहाँ पे आता है, ये पेज आप ओपन करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप खोलना। ये सारी चीज़ बहुत बेसिक है गाइज, आपको सबको आता होगा। ठीक है, स्टिल आई वांट टू शेयर इट विथ यू कि सो दैट एवरीबॉडी इज इन सेम पेज। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो ये रिजल्ट है। ठीक है, आप ये रिजल्ट पे क्लिक करें, आपको ये डेट, यहाँ पे डेट का रहेगा रेंज कि फ्रॉम वेयर टू वेयर। अगर आप 13 का चाहते हो, 13 का यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, आप सबमिट कर देना। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सा रिजल्ट कितने बजे आया था। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्लिक करके रिजल्ट को पढ़ भी सकते हो कि उन्होंने क्या रिजल्ट क्लियर किया है, क्या चीजें हैं, कितनी अर्निंग है क्वार्टर टू क्वार्टर, क्या चीजें हैं। उससे खैर हमें मतलब नहीं है, हमें बस इस चीज से मतलब है रिजल्ट कितने बजे आ रहा है। ठीक है, तो आप जैसे किसी दिन आपको लगता है कि कोई रिजल्ट जो है आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आने वाला है, जैसे एसबीआई का रिजल्ट मार्केट आवर्स के बीच में आता है, तो आपको पता है कि आज एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है, तो उस दिन आप आओ यहाँ पे, आप रिजल्ट में एसबीआई भी लिख दो। ठीक है, एसबीआई एन आप लिख दो और उसके बाद इसको सबमिट करो। ठीक है, सो यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये दूसरा एक अनाउंसमेंट है उसका है। सो यहाँ पे आप सबमिट करते रहो, रिफ्रेश करते रहो, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे तो ऑल ओवर न्यूज मिल जाता है। ठीक है, आप न्यूज में भी देख सकते हो, सारी चीजें रहती है। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली सबसे फास्ट, जैसे आपको पता है कि एसबीआई का रिजल्ट 1:30 के आसपास आता है, 1:30 के अराउंड पे द रिजल्ट ऑफ एसबीआई इज डिक्लेयर यूजुअली। सो 1:30 के अराउंड पे आप ये पोजीशनिंग लेके रेडी रहना। आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एसबीआई में किस तरीके से इस चीज का फायदा उठा सकते थे आप लास्ट ईयर। जैसे ये जो सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आप बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाओगे तो भी आप सिर्फ आप जब बस आपको बस पता होना चाहिए कि किसका रिजल्ट आने वाला है, कितने बजे आने वाला है। ठीक है, ये सिंपल चीजें भी अगर आप जानते हो ना, तो आप कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हो, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। एसबीआई का रिजल्ट आप ये ओपन करना। ठीक है, अपने चार्ट में खुद आप इस चीज को देखना, जब आप देखोगे तो एसबीआई का जब रिजल्ट आया था 3 नवंबर को। ठीक है, तो 3 नवंबर को जब रिजल्ट आया था, तो उस दिन क्या हुआ था, टाइम फ्लाइज गाइस, ये मुझे ऐसा लग रहा है कल की ही बात है कि उस दिन ये रिजल्ट पे मैंने ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी का था, बैंक निफ्टी पे उस दिन मैं ट्रेड कर रहा था, तो बैंक निफ्टी उस दिन काफी बेरिश था। अगेंस्ट रिमेंबर आई वाज वेटिंग कि जैसे ही एसबीआई के रिजल्ट आएगा मैं दोनों में पोजीशन लूंगा, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा वो तो पता ही था, एसबीआई भी ऊपर जाएगा।
तो फिर जैसे ही यहाँ पे आया, जैसे ही 1:30 के अराउंड पे, 1:30 के अराउंड पे, आई वाज हैविंग माय लंच एंड आई जस्ट फिनिश दैट अराउंड 1:20 और 1:25. आफ्टर दैट आई केम टू माय डेस्क एंड आई सॉ कि रिजल्ट आ गया एसबीआई का। यहाँ पे मैंने बाय किया था, और जैसे ही एसबीआई का रिजल्ट आया मैंने बैंक निफ्टी को बाय किया था एक्चुअली, ठीक है। मतलब यूजुअली मैं जो जो भी बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज़ रहती है, कुछ भी इवेंट या कुछ भी प्लानिंग रहती है, तो फिर उसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ बैंक निफ्टी में, उसको ट्रेड करना पसंद करता हूँ, ठीक है। आज मैंने जो बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था वो कैसे लिया था उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा आखिरी में। जो भी लोग आप में से आखिरी तक रुकेंगे तो उनके साथ में मैं वो डिस्कस करूंगा कि आज का ट्रेड के पीछे थोड़ा सा कि थॉट प्रोसेस क्या था, ठीक है। सो उसके पहले ये डिस्कस करते हैं। तो एसबीआई का रिजल्ट देखिए, आप अगर कुछ नहीं जानते, ठीक है, आपको नहीं पता वो डेटा क्या कैसे काम करता है, आपको नहीं पता प्राइस एक्शन क्या होता है, वट एवर, यू जस्ट कम टू द मार्केट एंड सी कि 1:30 इसका रिजल्ट आया है और यहाँ पे अच्छा मूव मिल रहा है। कोई भी यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान, उसने कभी भी कुछ स्टॉक मार्केट में कुछ भी काम किया, वो देख के समझ जाएगा कि यार ये मूवमेंट आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद वो यहाँ पे आप जो है बाय कर सकते, कैश में बाय करो, स्टॉक ऑप्शन बाय करो, आप जो है वो बाय करो, बैंक निफ्टी बाय करो, डजेंट मैटर। आपको वेट करना है जब तक ये मोमेंटम डिक्रीज नहीं होता है, तब तक आप इस पे बने रहिए। मोमेंटम जब तक है आप उसको फॉलो करते रहिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा साइजेबल प्रॉफिट लेके जा सकते हो। जैसे यहाँ पे पिन बार्स बनने चालू हुए, ठीक है, आपको दिख गया कि मोमेंटम स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं है, चीजें डिक्रीज होने लग जा रही है, जो मोमेंटम था वो कसम कम होने लग जा रहा है, यहाँ पे आप आराम से एग्जिट कर सकते हो। वेट कर लो, एक रेड कैंडल बनने, जैसे रेड कैंडल बन रहा है, आप एग्जिट हो जाओ, इतना प्रॉफिट आप लेके जा सकते हो। ये बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी के टर्म्स में देखें तो वहाँ पे अराउंड 200% का रिटर्न मिला था, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट और फिगर, बट था अच्छा खासा, कैपिटल डबल से भी ज्यादा हो गई थी तुरंत, मतलब जो भी डिप्लॉयड कैपिटल था वो। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल गाइस, इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये इट्स नॉट लाइक इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है या कुछ, आपको बस पता होना चाहिए वंस यू आर इन द मार्केट, इफ यू आर प्लेइंग दिस गेम कॉल्ड मार्केट, सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दिस। आपको पता होना चाहिए किस किस चीज का रिजल्ट आने वाला है, कितने बजे आने वाला है, कहाँ देख सकते हैं, सारी बेसिक्स आपको अगर इनका आइडिया है तो फिर आप फिर इंफॉर्मेशन के दम पे आप कुछ भी कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, ठीक है। दो चीजें बताएंगे। एक ये कि रिजल्ट किस तरीके से, मतलब आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो रिजल्ट। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा डायरेक्शन, तो देखिए डायरेक्शन का पता करने के लिए तो बहुत 4-5 चीजें चाहिए रहती है, ठीक है। वो तो मैं वेबिनार में मतलब डिस्कस करूंगा आपके साथ में डिटेल में, बहुत सारे जेल बेस्ड स्टेट के एग्जांपल रहेंगे, वो वहां पे डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन ये जानना कि रिजल्ट के बाद मूवमेंट बहुत ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, कि हो सकता है किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, वो चीज कैसे आपको पता लगेगी, ये मैं आपको आज ही बताऊंगा इस वेबिनार के एंड में। उसके पहले आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो यू गाइस कैन आस्क मी related to this, whatever I have discussed with you all, or anything you want to ask about the webinar which is going to start from Saturday morning. Anything if you want to ask, I'll answer here. Okay, please ask. If I know many of you are having few doubts, I'll answer here. And also I'd like to say here कि बहुत कम सीट्स बची हैं, तो अगर आपका मन है आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज you should proceed as soon as possible. Okay, so guys, if you are having any doubt, please ask me. Obviously Vedanta is asking, Mr. Vedanta is asking, sir, in the webinar will the scanner to select the FNO stock will be, obviously that is the whole purpose. Like कैसे आप मतलब वो बना सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप सोचो 200 एफएनओ स्टॉक्स हैं, सबके सबको तो आप नहीं देख सकते ना कॉन्स्टेंटली। जैसे आज अपन बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी के दिन हमारा ध्यान निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा रहता है, लेकिन आप वो तो नहीं कर सकते ना, टाटा स्टील में मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, डेल्टा कॉर्प में मूव आ रहा है कि आईएक्स में मूव आ रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें आप स्कैनर्स का काम ही ये रहता है, ठीक है। स्कैनर का ये रहता है कि काम ये रहता है कि वो आपको सेलेक्ट करके देता है जो भी चीजें चाहिए रहती है। जैसे मुझे चाहिए, जैसे मेरे पर्टिकुलर स्कैनर्स की बात करूं जिन पे मैं, तो एमटीएफ एनालिसिस वो स्कैनर खुद ही कर देते हैं, और ओआई बेस्ड एनालिसिस जो रहता है उसका भी बहुत सारा पार्ट वो लोग कर देते हैं, ठीक है। ओआई बेस्ड एनालिसिस भी वो करते हैं, और प्राइस बेस्ड एनालिसिस भी काफी हद तक वो करके देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो 4-5 रिजल्ट्स को थ्रो करते हैं, उनको फिर मैं अपने एंड पे वेरीफाई करता हूँ, बिकॉज आई वांट टू लाइक मेक श्योर बाय माई सेल्फ।
अब वो जब मेरे एंड पे वेरीफाई हो जाता है तो फिर आई टेक द रिजल्ट, ठीक है। ये स्टॉक ऑप्शंस की बात करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में रिजल्ट का मतलब स्कैनर का बहुत, हाँ स्कैनर में एक चीज है, जो प्रीवियस अटेंडेंस है उनको ये बात पता होगा, मैं कई बार बोलता हूँ कि स्कैनर में अगर मान लो सपोज स्कैनर में बैंक निफ्टी या निफ्टी आता है तो फिर उसको लीव नहीं करना है, फिर उसका फुल क्वांटिटी के साथ में जाइए, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी निफ्टी स्कैनर के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, स्कैनर में मैंने बहुत रिग्रेस क्राइटेरिया डाले हुए रहते हैं, वो सारे क्राइटेरिया को अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी फुलफिल करता है तो फिर डेफिनेटली उनमें बहुत अच्छा मूव आएगा ही आएगा, ठीक है। सो उसमें कोई डाउट नहीं होती। तो ये चीजें हैं, स्कैनर का काम ही है, बिना स्कैनर के मार्केट में प्रोसीड करना, इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट, you can't track all 200 stocks, ठीक है, continuously in market. So these are the things. Now let's there were some Vedanta saying thank you sir, thank most welcome Vedanta. There is one question from Raj who is saying ki I am a systemic based trader, any good strategy will be taught so that I will follow with discipline. Yes, obviously strategies will be taught, but not all my strategies are quantifiable, ठीक है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको, I am on the process of making algos based on them and quantify them, but right now we have to take decision by ourselves, because price action part is like a very what I can say, very subjective part. Okay, price action you can that depends on your vision and your ability to find the like pull back breakouts, all these things, तो वो चीजें हमको खुद करनी पड़ती है ना। सो ये चीजें हैं, अदरवाइज बाकी चीजें तो रहती हैं। या obviously Raj you will be able to, ठीक है, once you I think you have subscribed for the webinar na, so once you will learn all the strategies, then I think you will be able to make quantify all those things. Okay, I'll be talking about this in later. Pradeep is asking, is option buying risky during wall crash? Obviously option buying is very risky during wall crash, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने कल भी कोई पोजीशन नहीं दी थी, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन मतलब रिजल्ट बेस पे, हो सकता है ये चीजें होती है बहुत, ये चीज गलत करते हैं लोग, ठीक है। रिजल्ट आने के, देखिए ऑप्शन एज एन ऑप्शन बायर आपको रिजल्ट के पहले पोजीशन, जैसे इस दिन मान लो रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे, तो ऑप्शन बायर को इसके पहले पोजीशन बनानी है यहाँ पे, ऑप्शन सेलर को और उसके रिजल्ट के जस्ट बाद इमीडिएटली एग्जिट करना होता है। ऑप्शन सेलर जो है चाहे तो यहाँ पे ही पोजीशन बना ले, उनका काम चल जाएगा, वोलेटिलिटी क्रैश होगी तो उनको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक। रिजल्ट आने के बाद जो है ऑप्शन बायर का कोई काम नहीं होता, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद आप उस पर मत जाइए, ठीक है। Mindtree Y data, your expectation tomorrow. I'll have to analyze Mindtree, then I'll share and in my group, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें अभी देखनी पड़ेंगी, उसको देखेंगे अभी। Okay, there was one question which I think I left. I have already said na Umesh ki all the webinar will be recorded. Okay, everything will be recorded, don't worry, every word which I will be speaking in front of you will be recorded and I'll provide that unedited to you. No adulteration, no editing will be there, ठीक है। और एक और चीज है, मैं मतलब कई लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि सर वेबिनार के बीच में, जैसे अभी तो मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ बोलना बिकॉज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जैसे वेबिनार के बीच में आप जो लाइव वेबिनार होगी, ठीक है, जो उसमें मैं अलाउ करूंगा बोलना, आप लोग बोलोगे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चंस इतने होते हैं कि थोड़ा सा दूसरों को दिक्कत हो जाती है कि सर आप क्वेश्चन के चक्कर में अपना मैटर तो नहीं, आप मतलब कम शॉर्ट तो नहीं कर दोगे। सो ऐसा नहीं है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैं सबको सॉल्व करूंगा, और उसके बाद जो मुझे कहना है, मुझे जो चीज समझानी है वो मैं समझा के ही रहूंगा, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, दैट्स माय जॉब। So don't worry, everything will be recorded and you will, if you are attending the webinar, you will get everything. Okay, don't worry about that. And there is one question from like Ashish. He's saying ki, how do we know that buyer or seller is gonna be absent suddenly on expiry? Is this pure luck? As recently a case floated of Chennai West. अरे तो चेन्नई वेस्ट ट्रेडर के बारे में तो आई हैव डिस्कस्ड इन वाई डेटा आल्सो ना, ही डिड सो मच ऑफ मिस्टेक। आप सोचो, अब आप सोचो, ठीक है, दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट केस। ओके, लेट मी टॉक, एक बार और बात कर लेते हैं उस बारे में, ठीक है, हिंदी में ही बात करते हैं।
बहुत अनफॉर्चुनेट केस, कल इंग्लिश का वेबिनार था उसमें सर डिस्कस किया था, इसलिए हिंदी वालों को नहीं आइडिया होगा उस बारे में। बहुत अनफॉर्चुनेट केस है, ठीक है। जो भी बंदे हैं, आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर द नेम, उनको फॉलो कर रहा हूँ, मतलब शुरू से मैं देख रहा हूँ उस केस के, जब वो ट्विटर पे ही वाज आस्किंग फॉर हेल्प एंड ऑल। सो आई सॉ द मैसेज, आई डिड नॉट रिस्पॉन्डेड एनीथिंग, लाइक इसमें ऑलरेडी उसको उनको बहुत सारा रिस्पॉन्स मिल चुका था, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। उसको मैं अपने ग्रुप में भी शेयर करने वाला था, मैंने किया भी है वेबिनार अटेंडीज के को बता। जब मैं वेबिनार लेता हूँ गैस, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, कि लास्ट के वीक में ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको अगर ऑप्शन बाय करना है किसी स्टॉक का तो आप नेक्स्ट वीक का कर लो, है ना। आप ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, जैसे जनवरी एक्सपायरी का आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपके पास 4 वीक्स हैं बाय करने के लिए इस मंथ में, ठीक है। तो आप लास्ट का वीक है उसको छोड़ दो ना, इन 3 वीक्स में बाय करो, है ना। लास्ट वीक में प्रॉब्लम क्या होती है, वही चीज होती है, उसका वो लाइव एग्जांपल बन गया। अदरवाइज ये चीजें हम लोग बहुत पहले से डरा मतलब बताते आ रहे हैं, डराते आ रहे हैं लोग अपने अटेंडीज को इस बारे में कि ये नहीं करना है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल उठा के देख लेना, जब भी मैं कॉल देता हूँ लास्ट वीक जैसे ही आता है मैं नेक्स्ट वीक की कॉल देने लग जाता हूँ। इवन जीरोधा ऑल्सो डज नॉट अलाउज ऑप्शन बाइंग ऑन लाइक करेंट मंथ एक्सपायरी, पूरा का पूरा मार्जिन जीरोधा मांगता है आपसे, ठीक है। आप अगर आज या कल एक्सपायरी वेडनेसडे और थर्सडे के दिन पे पूरा का पूरा मार्जिन मांगता है। आई डोंट नो ऐसे या जो भी ब्रोकर था उनका उसमें वो चीज थी नहीं थी पता नहीं, उन्होंने थोड़ा पहले से पोजीशन मारा था। अब क्या चीज थी, दो चीजें उन्होंने गलती की, ठीक है। एक तो ये कि लास्ट के वीक में ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, प्रॉफिट जो भी होगा उससे ज्यादा रिस्क होता है, बहुत ज्यादा रिस्क तो उनको था ही, आपने देख लिया। दूसरी चीज ये होती है कि आप लूजिंग पोजीशन को कभी एवरेज मत करो, ठीक है। आपने देखा है कभी भी मैं अपने लूजिंग पोजीशन को एवरेज नहीं करता, है ना। और आप ग्रुप में भी आप देख लेना, कभी भी एसएल है तो है, एसएल हिट हो गया तो आई विल एक्सेप्ट दैट विद फोल्डेड हैंड एंड आई विल मूव ऑन, ठीक है। कभी भी ये नहीं कि पोजीशन मेरे अगेंस्ट में जा रहा है तो मैं उसको एवरेज कर लूँ, उसमें क्वांटिटी बढ़ा लूँ ताकि फिर वो थोड़ा सा मूव आए तो प्रॉफिट हो जाए, नहीं। आपको इसी मतलब दुनिया पड़ी है, इतने सारे ट्रेडिंग मतलब चीजें इंस्ट्रूमेंट हैं, इतने सारी चीज, आप बाद में प्रॉफिट बना लेना। अभी फिलहाल आप सोचो ना, आप किसी ट्रेड में हो, ठीक है, और उसमें आपको लॉस हो रहा है, इफ यू आर गेटिंग लॉस इन एनी ट्रेड, सो देयर मस्ट बी सम रीजन ना, तब कोई कुछ तो गलती हुएगी, आपका व्यू गलत होगा या आपका वो गलत होगा, क्या कहना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का वट एवर, आपका जो थॉट प्रोसेस था वो गलत हुआ होगा, आपने कुछ गलत चीजें सोची होंगी तभी आपका लॉस हो रहा है। आप उस चीज को समझो, उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझसे गलती हुई, तभी मेरे स्क्रीन में नेगेटिव अमाउंट दिख रहा है। आप ये सोचोगे कि नहीं पहले मैं 100 क्वांटिटी लेके घुसा था, अब उसमें मुझे 50 रुपए का लॉस हो रहा है, अभी 50 पे पहुंच गया तो मैं इसमें अभी 1000 क्वांटिटी ऐड करता हूँ, थोड़ा सा मूव आएगा तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शन, इसको इतनी आसानी से नहीं मतलब आप डील कर सकते। तो वो जो जो जेंटलमैन थे उन्होंने बहुत ज्यादा एवरेजिंग कर दी थी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई उनकी। अब अनफॉर्चुनेटली जो है लास्ट में उनका इन द मनी एक्सपायर हो गया। देखना आपको ये भी पता है कि लास्ट के आधे घंटे में चीजें एवरेज होती है, ये चीज भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ लोगों को वेबिनार में ही अपने। और बायर नहीं मिले उनको, तो अब हम बाय को क्यों बाय करेगा, ठीक है। वो सेल करना, वंस यू हैव बॉट एनी इंस्ट्रूमेंट ना, जैसे मान लो इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, ठीक है, आप जैसे मान लो निफ्टी का ही 18,000 का कॉल खरीदते हो आज, ठीक है। 18,000 का कॉल आप खरीदते हो मान लो, ठीक है। तो जितने भी रुपए में आपने 10 रुपए में खरीद लिया मान लो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, दिस इज जैसे फिक्शन लीजिए, आपने 10 रुपए में खरीद लिया, आपने जो भी प्रीमियम था वो पटा दे दिया, ठीक है। और उसके बाद आप निफ्टी में आपने ये कॉल खरीदा। अब आप इसको बाय सेल करते हो ना, तो अब आप सेलर हो जाते हो, ठीक है। जब आप इससे एग्जिट करते हो तब आप सेल ऑर्डर लगा रहे हो, आप एज ए सेलर की तरह काम, भले ही आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है उसको आप एग्जिट करो, बट आप हो तो सेलर ही ना। आपसे कौन खरीदेगा, आपसे कोई बायर है या तो वही खरीदेगा, या फिर जो सेलर था आप लिक्विडेट करना चाहता है वो पोजीशन, अपनी पोजीशन काटना चाहता है तो फिर वो खरीदेगा, तो वो तो करेगा नहीं। और कोई और क्यों बाय करेगा बताओ, या तो आपको डिलीवरी लेनी देनी हो तब आप बाय करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए वो फंस गए थे, है ना। और इसलिए ये चीज पहले से होती है। आप खुद सोचो एक्सपायरी के दिन कोई क्यों बाय करेगा, है ना, उतना ज्यादा उसको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, तो ये बेसिक है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो पहले दिन, ठीक है, मतलब ऑप्शंस की एबीसीडी का ये पार्ट है, सबसे पहले यही चीज पढ़ाई जाती है। इवन मैं भी अपने वेबिनार में जब पढ़ाता हूँ ऑप्शंस के डेफिनेशंस बताता हूँ, तो सबसे पहले यही चीज समझाता हूँ कि क्या होता है ऑप्शन का मतलब। ऑप्शन आर नॉट इंस्ट्रूमेंट की उसको इसलिए बना दिया गया है कि आप खरीद सको और बेच सको, नहीं, वो उनका अलग ही पर्पज है। और ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। सो इसलिए आप ऑब्सेंट ड्यूरिंग एक्सपायरी ऑब्वियसली एब्सेंट होगा ही, कोई क्यों लॉस लेना चाहेगा, अगर वो नहीं लेते तो किसी और को लॉस होता, उन्होंने ऑब्वियसली इसलिए कोई बायर नहीं था। अब देखना कई बार ऐसा होता है, कुछ कुछ स्टॉक्स में बिल्कुल बायर अवेलेबल नहीं रहते, कुछ में सेलर अवेलेबल नहीं रहते, ये चीजें होती, लिक्विडिटी का इशू रहता है। रेन इंडस्ट्रीज में उमेश को व्यू चाहिए, आई विल बी पोस्टिंग द व्यू, लाइक आपको जो जो भी स्टॉक में व्यू चाहिए रहेगा वो मैं
आपने ट्विटर वगैरह में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, देखना पड़ेगा चीजें। टुडेज वॉल्यूम में पैथेटिक, आई डोंट नो लाइक किस वॉल्यूम की बात हो रही है। कॉल, कैन बुल कॉल और बुल पुट स्प्रेड आर सजेस्टेबल बिफोर रिजल्ट? yes you can, and see if you are dealing with option strategies, I'm not the right guy to ask these questions, ठीक है, बिकॉज मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता, तो स्ट्रेटेजीज में भी काम नहीं करता, ठीक है। नेकेड ऑप्शन बाइंग सेलिंग के काम है, बिकॉज जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। आपने देखा ही आजकल, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर लो बैंक निफ्टी में, उतना ज्यादा मतलब अमाउंट हमें स्ट्रेटेजीज के साथ में नहीं मिल सकता। तो इसलिए आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि अगर कोई आप में से है कि ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में काम करना चाहते हो या सेलिंग करके स्टडीज में डील करना चाहते हो, तो फिर आई वोंट बी एबल टू हेल्प मच गाइस, ठीक है। आई डोंट हैव दैट मच, लाइक उसमें इंटरेस्ट नहीं है, करता भी नहीं हूँ, इसलिए नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको दूसरे लोगों से सीखना पड़ेगा। Will the scanners are web based or software based to install in PC? They are web based, nothing is needed to be installed, ठीक है। यस यू कैन, आपके फोन में भी काम कर लेगा वो, है ना। प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, राज इज आस्किंग यू आर वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी, नो नीड ऑफ इंस्टॉलेशन और एनीथिंग, फोन में भी काम करता है, ठीक है। Hope we can ask as many queries during the webinar. You can ask much more queries than these during webinar, ठीक है। आप जो चाहे पूछ सकते हो। आपको पता, मतलब शायद कल बताया था ये बात या परसों, आई डोंट नो। उसमें ये चीज थी कि एक कभी लास्ट लास्ट जो मैंने सेशन लिया, लास्ट सैटरडे मैंने सेशन लिया था, उसमें एक मैडम थी, उन्होंने, उनको ऑप्शन सेलिंग करनी थी, ठीक है। वो नई नई आई है मार्केट में, तो उनको ऑप्शन सेलिंग करनी थी। तो उस बारे में ही हम लोगों ने मतलब 1-1.5 घंटे तक मैं डिस्कस किया था, उनको ऑप्शन सेलिंग की चीजें बता रहा था। तो जो भी आई नो अबाउट उसके बारे में डिस्कस करा, तो मेरा स्कोप नहीं था, मेरे पार्ट का नहीं है, मेरे वेबिनार का पार्ट नहीं है। स्टिल आई वाज टॉकिंग, जो भी डाउट रहता है, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा, मैं जितना क्लियर कर पाऊंगा आपको करूंगा, है ना। बाकी मेरी स्ट्रेटेजीज तो मुझे पता ही है, मैं आराम से उसको बता दूंगा। ठीक है। एंड so to buy an option the volatility must be higher than the average volatility आफ्टर योर बाइंग, ठीक है। आपके बाय करने के बाद वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, पहले नहीं। पहले से अगर बढ़ चुकी है तो ऑप्शन हाई प्राइस में मिलेगा, और अगर वॉलेटिलिटी उसके बाद और बढ़ती है तो फिर इट्स गुड, ठीक है। आपके बाय करने के बाद वॉलेटिलिटी और बढ़ती है तो इट्स गुड, लेकिन अगर बाय करने के बाद वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, जैसे कि रिजल्ट के बाद होता है, तो फिर इट विल बी लाइक नॉट इन योर फेवर, ओके। हाँ कम है, होना ये चाहिए। आपके बाय करने के बाद वॉलिडिटी बढ़नी चाहिए, चाहे एवरेज से कम है या ज्यादा है उससे मतलब नहीं, आपके बाय करने के बाद वॉलिडिटी बढ़नी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। स्कैनर दूसरे वेबसाइट पे है, वो आपको पता चल जाएगा। प्रेम सिंह, यू आर ऑलरेडी इन वेबिनार, व्हाई आर यू आर बॉदरिंग अबाउट दैट, डोंट वरी, ठीक है। यू हैव पेड फॉर द वेबिनार फ्रॉम सिंस लाइक 1.5 month बिफोर द वेबिनार, ओके, don't worry. How to enter webinar, where can I get that? Yeah, Sumit is asking where can you get that, let me tell you. Just open this, ठीक है, open this thing which is just a minute, right? This is, I think this will be the last question. फिर उसके बाद में जो 2-4 चीजें डिस्कस करने वाला था, एक अपना आज का बैंक निफ्टी ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा कि रिजल्ट्स के बाद मूवमेंट आएगा नहीं आएगा वो कैसे पता करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। 2 चीजें मैंने प्रॉमिस की डिस्कस करने की, वो मैं करूंगा। उसके बाद फिर विल फिनिश दिस सेशन। उसके पहले ये सुमित ने ये क्वेश्चन आस्क किया है, क्वेश्चन पूछा है। दिस मैं इंग्लिश हिंदी को बहुत मिक्स कर देता हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो ये क्वेश्चन सुमित ने पूछा है कि हाउ टू एंटर वेबिनार, वेयर कैन आई गेट द डिटेल। तो ये चीजें हैं, देखिए आप, ये मेरा वेबसाइट है, इस पर जाएंगे conceptual.com, ठीक है। ये मेरे वेबसाइट का नाम है CNCEPTUL। यहाँ पे ओ मिसिंग है, उसके पीछे एक मिस्ट्री है, आपको फिर कभी जब समय मिलेगा तो बताएंगे कि ओ क्यों मिसिंग है करके। तो ये आपकी खुद की वेबसाइट है गाइस, यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। ये आपको कुछ चीज़ें जो मैंने बहुत पहले मतलब किया, जिल जब 40% मूव किया था तो उसके पहले मैंने ये ट्वीट किया था, ये देख सकते हो आप, उसके एक रात पहले ट्वीट किया हुआ था ये, ठीक है। ये एंडिगो और ये सारी चीज़ों पे टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं। आप लोग प्राइस एक्शन के बारे में जानना चाहते हो, थोड़ी चीज़ें रीड करना चाहते हो, तो आप इस आर्टिकल्स में जाना, आपको पता चलेगा, ठीक है। कुछ कुछ अपडेट नहीं हुआ है इसमें, क्लाइमेक्स कंट्रोल वाला अभी तक अपडेट नहीं हो पाया, होगा, जब होगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आर्टिकल्स आप रीड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले बनाया था, सितंबर में मैंने जो थ्रेड्स बनाए थे उनका ये यहाँ पे वो है। इमेज अभी लोड नहीं हो रहा है, इमेज लोड होने में टाइम लगेगा, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है।
ये आर्टिकल्स हैं आपके खुद के। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको आर्टिकल्स का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। द पासवर्ड हियर इज TCT1, ठीक है। सो ये पासवर्ड आप एंटर करोगे तो आपको डाउनलोड मिल जाएगा, ठीक है। वो भी ओपन नहीं हुआ, मैंने पेज यहाँ पे है, ओपन हो रहा है, यस। तो ये डाइवर्जेंस प्राइजेक्शन के सारे थ्रेड्स यहीं पे अवेलेबल हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और ये दो सेक्शन है, ये वेबिनार अटेंडीज के हैं, उनके खुद के सेक्शन, वहाँ पे जा करके वो वीडियोस वगैरह देखते हैं, और कोई अपडेट होता है तो मैं वहाँ पे बता सकता हूँ। ये चीज़ें मेरे बारे में जानना है तो ये आर्टिकल पढ़ना है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा इस पे। और उसके बाद जो ये पेज है वेबिनार का पेज ये प्रदीप इज आस्किंग आई विल वेट इन नेक्स्ट वेबिनार, ठीक है। उसके अभी इसके भी नेक्स्ट में, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ये देखो, ये जो पेज है इस पे आप जाना, वेबिनार का डिटेल्स मिलेंगे। जब भी कोई वेबिनार वगैरह होने वाला होगा, अभी फिलहाल जो जनवरी में होने वाला है, और नियर फ्यूचर में भी और कुछ नहीं होने वाला। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी चीजें, आपको सब कुछ डिटेल में मैंने बता रखा है, ठीक है। आपको, आप इसको जाइए, रेड करिए, ठीक है। वन से यहाँ पे आपको जो क्या कहना चाहिए, रिव्यूज हैं ये मिल जाएंगे, ठीक है। दीज आर ऑल एक्चुअल पीपल। आप चाहो तो आई एम नॉट सेइंग कि, लेकिन आप इनसे चाहो तो पूछ सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि उनसे परमिशन ले लेना एक बार चैट करने का, उसके बाद पूछ सकते हो। ये रिव्यूज आपको मिल जाएंगे, मेरा रिव्यू है वेबिनार का, और ये मेरा कंटेंट, ठीक है। एक्चुअली में मतलब क्या क्या चीज़ें रहेंगी उनके बारे में, ये सारी चीज़ें मैं आई इंश्योर कि एवरीथिंग इज टॉट प्रॉपरली टू एवरीवन, ये चीज़ें रहेंगी यहाँ पर। उसके बाद फिर ये कंटेंट्स हैं, ठीक है, वेबिनार के कंटेंट हैं। डेटा के बारे में बात होगी, साइकोलॉजी, मार्केट साइकिल, प्राइस एक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में, प्राइस एक्शन का हर एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं, और इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे मेरे टेक्निक्स, यहाँ पे जो टूल्स हैं जिनसे, जिनके दम पे वी रीड द डेटा एंड वी टेक द ट्रेड्स, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं आर्सेनल्स करके ये सेक्शन है उस पर, उसके साइकोलॉजी के बारे में बात होगी, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक मतलब सब कुछ कम है अगर आप साइकोलॉजी के बारे में बात नहीं करते तो, ठीक है। साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी चीजें तो जान ही जाओगे, लेकिन साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा। उसके बाद प्राइस एक्शन के बारे में बेसिक लेवल के से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक्स को क्लियर करेंगे, फिर एडवांस में जाएंगे। एडवांस में सारी स्ट्रेटेजीज को डील करूंगा मैं। स्ट्रेटेजीज आपको इतनी अच्छी से आ जाएंगी कि आप फिर एक नज़र देख के समझ सकते हो कि ब्रेकआउट होने वाला है, या फिर रेंज ब्रेकआउट होने वाला है, पुल बैक होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम से, ये नहीं कि आप पूरा ड्रॉ कर रहे हो तभी आपको समझ में आ रहा है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप आज के ट्रेड में भी ब्रेकआउट था, नीचे के साइड में ब्रेकडाउन दिया था बैंक निफ्टी ने। इंडिकेटर और ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ी बहुत बातें होंगी। आई डोंट यूज एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर, क्यों नहीं करता, कहाँ जरूरत पड़ती है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। RSA और MTF एनालिसिस मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा स्कैनर खुद करके देता है, तो इस पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शंस के बेसिक्स जो कि आप लोग जानते ही हो, ठीक है। बहुत सारा तो यही डिस्कस कर लिया। एंड यस, आई विल एक्सप्लेन अबाउट टुडेज बैंक निफ्टी ट्रेड, ठीक है। सो उसके बाद ऑप्शंस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वाई डेटा रीडिंग, ठीक है। ये जो एक लाइन है, इसको डिस्कस करने के लिए मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो पूरा एक डिस्कशन प्रॉपर होता है, जब अच्छे डिस्कशन हो जाता है तो फिर आप भी बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे एक टॉपिक को कैसे फाइंड करना है, और एक टॉपिक को फाइंड करके आप अच्छे से, बहुत अच्छे से ट्रेड कैसे ले सकते हो, ठीक है। फिर स्कैनर्स के बारे में बात होगी, उसके बाद स्ट्रेटेजीज के बारे में बात होगी, ये सारी स्ट्रेटेजीज की इंटरडे में कैसे काम करना है, स्विंग में कैसे काम करना है, स्कैल्प कैसे करना है, BTST कैसे करना है, ठीक है। बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स, तीनों ही चीजों पे, ठीक है। FNO स्टॉक्स के बारे में ही बात होगी, नॉन FNO स्टॉक्स का कोई काम नहीं है हमारे पास। सो ये सारी चीजें, केस स्टडीज बताऊंगा अपने एग्जांपल, बहुत हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल आर देयर, और सारा कोर्स मतलब मुझे लगता है कि 1000 से भी ज्यादा स्लाइड्स होंगी, ठीक है। क्योंकि 10 से ज्यादा तो मैंने PPT बनाई है, 10 ज्यादा PPT प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, और उसमें हर एक में 100-150 के आसपास स्लाइड्स हैं, तो 1000 से भी ज्यादा स्लाइड्स हैं। 30-40 घंटे मुझे लगते हैं, कंटिन्यूस बोलना पड़ता है, तब जाके चीजें आप लोग को आती हैं काम में। फिर उसके बाद रैप अप करेंगे, यूडी एनालिसिस कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं, ठीक है। केस स्टडीज बताऊंगा, लाइव वीडियोस रहेंगी कुछ कुछ, ठीक है, कि इन चीज़ों को इस तरीके से रहेगा। और उसके बाद यूडी एनालिसिस रहेगा। वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि वॉच लिस्ट कैसे बनाना है अगले दिन के लिए। एकदम होना चाहिए कि आपको वॉच लिस्ट में 4-5 चीज़ें हो, और उनमें से कोई ना कोई एक ट्रेड तो निकले, ठीक है, 1-2 ट्रेड एटलीस्ट निकले। और ये रहेगा एवरेजिंग वगैरह के बारे में, यहाँ पे मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि लूजिंग ट्रेड को एवरेज नहीं करना चाहिए, और चीज़ें हैं एवरेजिंग कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस टारगेट ये सब, ठीक है। अब मेरे जो सारे एसएल्स रहते हैं वो वाई बेस्ड रहते हैं, प्राइस एक्शन भी रहता है कुछ, लेकिन जो टारगेट रहता है वो हमेशा का हमेशा वाई बेस्ड ही रहता है, ठीक है।
सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और बाकी जर्नल साइकोलॉजी ये सब चीज़ें, और आगे के क्या प्लान है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़ मैंने डाली हुई है अपने वेबिनार में, दो चीज़ें जो कि अगर मैं खुद अटेंड करता होता ना तो इन चीज़ों से बहुत इंप्रेस होता है, लेकिन उसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। एक तो ये कि आ, बाकी चीज़ें तो है, हैंड होल्डिंग वगैरह तो चीज़ें रहेंगी ही, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि आ, ये बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है उसको लोग सबसे कम ध्यान देते हैं, वो ये है, कहाँ गया, कहाँ लिखा हुआ है, यस, रिफ्रेशर सेशन। सो ये मैंने यहाँ पे रिफ्रेशर सेशन के बारे में बात की है। तो वेबिनार खत्म होने के 6 महीने के बाद, यानी अगले मतलब 2022 के मई जून में, जुलाई 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 के टाइम पे एक रिफ्रेशर सेशन रहेगा। उसमें हम बात करेंगे कि जैसे लोगों को लगता है ना मार्केट जैसे अभी बहुत अच्छा बुल रन चल रहा था, ठीक है, फिर बीच में थोड़ा सा सेटबैक आया, पुल बैक आया, अभी फिर से एक बुल रन चालू हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इसमें, स्टॉक्स में भी। बैंक निफ्टी में 10 दिन से बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाया है, कम बड़ी बात है। तो ये चीज है, तो ये बुल रन चल रहा है, लेकिन अगर मान लो बुल रन खत्म हो जाएगा, साइडवेज मार्केट चला जाएगा, तो फिर ये स्ट्रेटेजीज काम आएंगी नहीं आएंगी। डेफिनेटली सारी स्टडीज काम आएंगी मेरी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन और कुछ नया मैं ऐड करता हूँ या कुछ नया जनरेट करता हूँ, कोई नया कंसेप्ट डेवलप करता हूँ, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ में इस रिफ्रेशन सेशन में डिस्कस करूंगा, है ना। सो इट्स नॉट लाइक कि एक दिन का काम है, मैं आपको बोल दिया, आपके सामने आके मैंने पीपीटी पढ़ ली और उसके बाद जो है, उसके बाद क्या, उसके बाद काम खत्म, टाटा, ऐसा कुछ नहीं है। द आई विल बी एबल, ठीक है, तो आई विल बी देयर अवेलेबल, आई विल बी अवेलेबल, है ना। 6 महीने के बाद भी आपसे बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी स्ट्रेटेजीज में, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। सो आई विल बी, ठीक है, मैं रहूंगा मार्केट में, आपके सामने रहूंगा, ऐसा नहीं है कि वेबिनार खत्म करके कहीं जाने वाला हूँ, तो आपको स्टडीज समझ में आएंगी, है ना, और आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले पाओगे डेफिनेटली। और चीज़ ये है कि एक और चीज़, मनी बैक गारंटी के बारे में लिखा, यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपको सेशन पसंद नहीं आता, एक दिन आपने अटेंड किया पसंद नहीं आता है, आप मुझे बस एक मैसेज कर देना कि सर नहीं, मतलब मुझे रिटर्न चाहिए मेरा मनी, आई विल रिफंड ऑल द मनी, ठीक है, एक दिन के बाद के सेशन के बाद की ये बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो आई हैव फेथ ऑन माई टेक्निक्स, आई हैव फेथ ऑन द रिव्यूज विच आज भी मैंने ग्रुप में डाला था, वो एक जेंटलमैन है, उनका रिव्यू है बहुत मतलब उन्होंने, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं है आज तक, ठीक है, जितने भी मेरे अटेंडीज है ना, आज तक किसी को नहीं बोला कि रिव्यू आप डालो, या जैसे ये रिव्यू भी है, बस एक मैंने थ्रेड बनाया था उसके पीछे कहा था, उसके अलावा अदरवाइज किसी को भी मैं बोला नहीं है। जितने भी मैसेज मैंने पोस्ट करता हूँ, ठीक है, ट्विटर में या कोई, अपने आप लोग बोलते हैं, इवन आज बैंक निफ्टी का मैंने कॉल दिया, बहुत लोगों का पैसा बना है उसमें, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि जो प्रॉफिट है स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, फिर मैं उसको पोस्ट करूंगा ट्विटर में, ऐसा नहीं, अपने से पोस्ट भेज देते हैं तो मैं उसको पोस्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज इट्स नॉट। क्योंकि मुझे पता है काम तो सही चल रहा है ना, ट्रेड्स जनरेट हो रहे हैं, तो इसलिए आपको, आप लोग तो उतने इंटेलिजेंट हो ही है, सी दिस इज द थिंग, जो रिटेल ट्रेडर है ना, इतने इंटेलिजेंट हैं कि उनको सब चीजें पता होती हैं, ठीक है, कांट फूल एनीबॉडी, ठीक है, आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो, एंड इसलिए इट्स नॉट दैट इजी, कुछ भी चीज फेक नहीं रहेगी ऑब्वियसली, है ना, मैं यही रहूंगा मार्केट में आप सबके सामने, ट्विटर में, यूट्यूब में, एवरीथिंग यू कांट हियर। नेटवर्क थोड़ा सा स्टेबल हो गया तो फिर स्टेबल हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, या सो दैट्स, आई थिंक ये एक जो एडवर्टाइजमेंट था मुझे मैंने कर लिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस। अब एक बार और बात करते हैं उसके बारे में। सो गाइज यहाँ पे मुझे एक बात और बोलनी है, अगर आप लोग वेबिनार अटेंड नहीं करते हो किसी भी वजह से, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट लाइक पसंद नहीं आता आपको या कुछ भी, ठीक है, या आपको लग रहा है कि नहीं आप आपके लायक नहीं है, वट एवर, तो भी कोई इशू नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि हम यहाँ पे सिर्फ वेबिनार सेल करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है, वी हैव ए रिलेशन, ठीक है, यू गाइज आर फॉलोइंग मी, यू गाइज आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी, एंड आई रेस्पेक्ट दैट अ लॉट, ठीक है। Recently, I crossed 3,000 milestone in Twitter, and that increases my responsibility a lot. ठीक है, 3,000 लोग हैं जो मेरी बातों को सुनना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो इसलिए कभी भी हमेशा आप लोगों के फायदे की ही बात रहेगी, ठीक है, कुछ भी ट्वीट करता हूँ, कुछ भी सेशन लेता हूँ या यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रहती है कि जो इंसान इसको पढ़ने वाला है या जो इंसान ये वीडियो देखने वाला है, उसका समय के वर्थ इट है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ उसको 100 लोग देखते हैं, मेरा मतलब मेरा, हाँ, यूट्यूब में भी मेरा काम ऐसा नहीं है कि हजारों लोग चाहिए मुझे या मिलियंस ऑफ व्यूअर्स है, नहीं, 100 लोग भी देखते हैं,
100 लोगों के काम की चीज होनी चाहिए, उनको कुछ फायदा मिलना चाहिए उस चीज से, ठीक है। अगर एक बंदा भी मेरा वीडियो देखता है तो दैट्स इनफ फॉर मी, लेकिन उस एक बंदे का फायदा होना चाहिए, ये मेरा काम है, ठीक है, ये मेरा एम रहता है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। सो अगर आप लोग मुझे टाइम दे, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीवन। पैसा तो आता जाता रहता है ना, पैसा आज आ जाएगा कल चला जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम तो फाइनाइट अमाउंट में है ना, तो टाइम इज गेटिंग लॉस्ट एवरी इन एवरी सेकंड। आप वो मुझे दे रहे हो, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट, ओके, एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोग कुछ ना कुछ गेन करके जाओ। ना अटेंड करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हाँ, तो रिजल्ट बेस्ड सेशन का एक बात कर लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे, मतलब रिजल्ट का स्टॉक कितना मूव करने वाला है, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप जो है ये ओपन करना, ये एक साइट है स्टॉकेज, ठीक है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस स्टॉक साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड साइट इट इज, ठीक है। और मिस्टर विवेक बजाज की ये साइट है, ये उनकी कंपनी इसको मैनेज करती है। सो यहाँ पे आप जाना, ठीक है, ये आपका उसका होम पेज है स्टॉकेज का। स्टॉकेज पे होम पेज में आप जाना, सर्च फॉर स्टॉक करना, कोई सा भी स्टॉक जो आप चाहते हो, जैसे इन्फोसिस चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखेगी, लेट्स टॉक अबाउट टीसीएस, ठीक है, टीसीएस को पहले बात करते हैं। तो टीसीएस को देखना और फ्यूचर वाई ये ऑप्शन खोलना, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बता रहे हैं ना, ये चीज है कि ये जो है फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट कितने डेवलप है ये बता है। जैसे 14 दिसंबर को इतना फ्यूचर वाइड डेवलप था, उसके बाद 15 को ये था, 16 को ये, 17 को ये नंबर बताता है, एब्सोल्यूट नंबर्स में यहाँ पे रहता है, ये सारे 22 नंबर के साथ में बनते हैं। सो आप जैसे यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे अब ये देखोगे तो आपको पता चल जाए, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा 15 दिसंबर को इतना ओपन इंटरेस्ट था इसका, 1,15,45,950, और 2 लाख के ऊपर इसमें एडिशन हुआ था 15 दिसंबर। 16 की बात करें तो उसमें सब्सट्रैक्शन हुआ था, इसलिए ये रेड लाइन है। तो ये इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे आप देखो इसका रिजल्ट जैसे आया, जब रिजल्ट आया, आई थिंक टीसीएस का रिजल्ट 12 को आया था। सो हाँ, 12 को आया था, तो 12 को आया था तो बहुत ज्यादा देखो कोई पोजीशनिंग नहीं है, ठीक है, इंक्रीज नहीं हुआ है कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। सो इसलिए ना इसमें कोई ऐसा बहुत यूनिक डायरेक्शनल एक अच्छे मूव की उम्मीद नहीं थी, ठीक है। अगर ये बहुत अच्छा इंक्रीज होता है, ठीक है, जैसे तो उसमें एक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक मूव आ सकता है, ठीक है। जैसे आप अभी आने वाले जो है एचडीएफसी का देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक का ले लो। सो पोजिशनिंग इंक्रीज, यस देखो एचडीएफसी बहुत ज़्यादा पोजिशनिंग हुई है आज, है ना, लेकिन कंटिन्यूअस इंक्रीज होना चाहिए उसमें। तो फिर आपको एक अच्छा चांस रहता है कि अच्छा एक मूव आएगा करके, ठीक है। जैसे देखो माइंड ट्री में देखो, यस माइंड ट्री में देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है पोजीशन। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि बड़े लोग अपना पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। देखो आप प्रीवियस ईयर के प्रीवियस मंथ के मुकाबले देखो किस टाइप का पोजीशनिंग था और अभी कितना पोजीशनिंग है, तो बहुत अंतर है ना। तो पोजीशनिंग बढ़ रही है, यानी कि बड़े लोग कोई पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं, और वो लोग बड़े लोग ना बड़ा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो लोग डेफिनेटली स्टॉक को बहुत ज़्यादा मूव करेंगे रिजल्ट के बाद, ठीक है। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे इसके लिए आपको 3-4 स्टेप और मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हम वेबिनार में डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आज का बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था वो कैसे हुआ था। यस यस, आई रिमेम्बर दैट, ओके, डोंट वरी। SS is asking we take some rest tomorrow and come fully energized on Saturday. Health first. Thank you, SS. I'll take the rest. ठीक है, या एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू फाइंड टाइम, इसलिए इवन बहुत लोगों ने पेमेंट किया, मैं अभी तक मतलब मैंने किसी को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाया हूँ कि आपका पेमेंट कंफर्मेशन हो गया, सब मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए कल बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी मैं पोस्ट नहीं कर पाया था, ठीक है। वो तो अच्छी बात थी कि मैं आज ट्रेड मैंने पोस्ट कर दिया, ट्रेड एक जनरेट कर लिया था। सो लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी ट्रेड टुडेज, ओके। व्हाट हैपेंस यहाँ पे आप देखो, ठीक है। Hmm. Okay, so you guys are able to see my screen. Now what happens? Let's देखो guys, एक चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी अपने आप में कुछ नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी इज एन इंडेक्स। अब बेसिक हमेशा ना बेसिक पे ध्यान दिया करो, ठीक है। कोई चीज क्या है उस चीज के ना बेसिक पे आप लोग जाया करो। कभी भी आप लोग ये मत सोचा करो कि मतलब बेसिक को आप स्केप कर दोगे तो आपके फिर कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाएंगे। सो आप इस चीज को समझो कि बैंक निफ्टी इज एन इंडेक्स, ठीक है। बैंक निफ्टी इज नथिंग इन इटसेल्फ, ओके, वो अपने आप में कुछ नहीं है।
वो जो बैंक्स हैं, मेजर बैंक्स हैं, उनका एक एग्रीगेशन है, उनका एक इंडेक्स है जो बताता है कि सारे बैंक्स किस तरीके से मूव करना है। जैसे और बहुत सारे इंडेक्स है मार्केट में, निफ्टी आईटी, निफ्टी सीएनएक्स, निफ्टी सीएनएस फार्मा, सीएनएस मेटल, बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरह से बैंक निफ्टी है, और बैंक के कंस्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करता है। ये और बात है कि बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, उसके लिए सारे बैंक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इन बैंक्स का यूज करके मैनिपुलेट करते हैं बड़े प्लेयर्स। ठीक है, तोड़ना रहता है तो किसी और बैंक में पैसे डालते हैं, और निकालना रहता है तो किसी से पैसा निकाल लेते हैं, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे समझो कि मेजर कंस्टिट्यूएंट जो रहते हैं बैंक निफ्टी के, वो ये पांच: एच डी एफ सी, आईसीआई, कोटक, एक्सिस और इंडस। उसमें भी सबसे मेजर है एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, एंड आई हैव टोल्ड, यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा कि निफ्टी का पार्ट है बैंक निफ्टी। ठीक है, बट बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है निफ्टी। ओके, तो इसलिए बैंक निफ्टी का मूव जो है निफ्टी से ऑब्वियसली उसके साथ चलेगा, है ना, क्योंकि होल मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन निफ्टी में कोई मूव आ रहा है तो बैंक निफ्टी में रिफ्लेक्ट होगा जरूर, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई मूव आता है तो वो निफ्टी में जरूर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, सो ये चीज देखना, कई बार टीसीएस, इन्फी, रिलायंस मूव नहीं करते होते, लेकिन बैंक निफ्टी मूव करता है, इसलिए निफ्टी को मूव करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान लेके चलना। अब यहाँ पे आप देखो, जो सिनेरियो था जब मैं ट्रेड ले रहा था, तो वहां पे क्या था, सुबह सुबह मैं रनिंग कमेंट्री भी कर रहा था मार्केट में। ठीक है, वो टाइम कैसे निकल अब सामने, क्योंकि आज पता है कि मार्केट में बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है एक्सपायरी के दिन। तो उस वक्त जो है मेरा फोकस बैंक निफ्टी में ही था, तो मैं पूरे इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा था बैंक निफ्टी पे, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब इमिडिएटली बता भी रहा था। तो आप देखो बैंक निफ्टी को, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको दिखेगा, लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो बहुत आसानी दिख जाएगा, लेकिन आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाओ बैंक निफ्टी। आज देखो कि ये जो ट्रेड्स है ना, यहाँ पे एक बड़ा फॉल आया बैंक निफ्टी में, 1 मिनट के अंदर अंदर ही बैंक निफ्टी फॉल कर गया स्टार्टिंग ओपनिंग में ही। उसके बाद यहाँ पे बहुत देर स्टे कर रहा था। तो जनरली बैंक निफ्टी की आदत नहीं है कि वो इतना देर यहाँ पे स्टे करे, लेकिन यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी बहुत देर तक यहाँ स्टे करता है, तो ऑब्वियसली कुछ तो बड़ा गेम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैसेज किया कि अभी जब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप कोई पोजीशन ना लें। ठीक है, ये मैंने बोला था। अब उसके बाद क्या होता है, रिटेलर्स को किस तरीके से जो है बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आप इसको समझो, यहाँ पे ना जैसे ही एक रेंज था, वो रेंज ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी एक रेंज में था, उस रेंज को जैसे ही बैंक निफ्टी में ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर पोजीशन ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन चला जाएगा, है ना। आप चाहो तो इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेना, वहां पे भी आपको देखिए, वहां पे तो और क्लियरिटी हो रही है। ठीक है, वहां पे तो ऐसा मतलब आप पोजीशन लोगे ही लोगे उसको देखोगे तो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही चीज हुई कि ये ऊपर जाने लग गया। अब वहां पे क्या हुआ, जब मैं ये ऊपर जा रहा था ना, तो आई वॉज नॉट श्योर कि मतलब नॉट श्योर अबाउट द मूव। ठीक है, जो ऊपर का मूव था वो मुझे उतना श्योर नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि आप हमेशा देखना, मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो हमेशा कंस्टिट्यूट के बारे में बात करता हूँ। दिस इज द थिंग, मैंने देखा है मतलब यूट्यूब में बहुत लोग एनालिसिस डालते हैं, ठीक है, लाइक हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स आर देयर जो कि अपना एनालिसिस डालते हैं, लेकिन कोई कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में उतना ज्यादा बात नहीं करता। जबकि होता यही है, गेम तो असली कंस्टिट्यूएंट से ही होता है ना। ठीक है, क्योंकि अगर आप समझो इस चीज को, अगर आईसीआईसीआई कहीं और जा रहा है और एचडीएफसी कहीं और जा रहा है, तो फिर बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा? बैंक निफ्टी का तो डायरेक्शन क्लियर होगा ही नहीं ना। जब वो एक साथ अलाइन होंगे तभी तो डायरेक्शन क्लियर होगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना है, इसीलिए मैं यूट्यूब में एनालिसिस अपना चालू किया। दरअसल अगर मुझे लगता ना कि नहीं, कोई ऑलरेडी कोई प्लेयर है जो बहुत अच्छा एनालिसिस डाल रहा है, तो मैं अपना काम नहीं चालू करता वहाँ पे, है ना। तो इसलिए आप लोग देखा, अगर आपको देख के समझ में आ गया होगा कि एनालिसिस में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि सारे बैंक्स को देखना पड़ता है, तब जाके ट्रेड। बैंक निफ्टी इतनी आसान चीज नहीं है गाइस कि उसमें आप आराम से ट्रेड ले सको, है ना। बहुत मुश्किल होता है बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना, लेकिन स्टिल अगर आप लेते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, मच मोर कंपेयर टू स्टॉक्स। तो यहाँ पे आप देखो, एच डी एफ सी में बहुत बड़ा लेवल था 1540 का। ठीक है, मैंने एच डी एफ सी का इमीडिएटली वाई डेटा चेक किया, तो वाई डेटा में मुझे ये लग रहा था कि 1540 को ये ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। और एच डी एफ सी में पूरी पोजिशनिंग जो है मुझे लग रही थी कि आज बियरिश साइड में पोजिशनिंग है, मुझे लग रहा था कि एच डी एफ सी तो नीचे जाएगा। अब प्रॉब्लम ये था कि आईसीआईसीआई जो था वो बहुत बुलिश था। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बुलिश था, और आईसीआईसीआई में ये जब आईसीआईसीआई का बुलिशनेस मैंने देखा, एसबीआई तो था ही, ठीक है, लेकिन एसबीआई से भी ज्यादा मुझे वो था आईसीआईसीआई से रहता है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा अफेक्ट करता है, हालांकि परसेंट वाइज दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। सो जैसे यहाँ पे ना ये जो पॉइंट था, यहाँ पे एक पिन बार फॉर्म हुआ, उसके भी पहले, ठीक है, इसके फॉर्मेशन के भी पहले, जब मैं यहाँ पे डेटा रीड कर रहा था कॉन्स्टेंटली, तो मैंने देखा कि आईसीआईसीआई में जो डेटा है वो भी बियरिश है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बुलिश है। आईसीआईसीआई 830 को तो ब्रेक नहीं करेगा, 830 के नीचे रहेगा,
20 के भी नीचे जा सकता है, 20 के अराउंड पे स्टे कर सकता है, 30 से 20 के बीच में। तो ये जब डेटा मैंने देखा तो मुझे लग गया कि नहीं अब तो रिवर्सल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये जो मूव था तब मैं समझ गया कि फिर हाँ वही डेटा से मुझे क्लैरिटी मिली कि नहीं एचडीएफसी तो बेरिश है ही, आईसीआईसी में भी थोड़ा बेरिशनेस है, और ये चीजें वो हो सकती है। और एसबीआई वाज लाइक, एसबीआई फॉलोड द रूल। एसबीआई में मुझे ये था कि एसबीआई में अगेंस्ट में भी जाएगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। ये चीज होती है, अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई किसी चीज को फॉलो करना नीचे ले जाना चाहते हैं तो आईसीआई के अंदर इतना दम नहीं है, एसबीआई के अंदर अकेले के इतना दम नहीं है कि वो फिर पूरा ऊपर लेके जा सके, ठीक है। और कोटक और एक्सिस भी उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करते। तो ये चीज थी। आई वॉज वेटिंग, जैसे ही मुझे लगा ठीक है तो मैंने वो कॉल दिया, और उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है, ठीक है। 57 उसका लो था, 57 पॉइंट समथिंग का लो बनाया था उस पर्टिकुलर ऑप्शन ने, और वहां पे 60 में हमने उसको बाय किया। तो चाहते तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं खुद मतलब सिर्फ मेरे पे रहता ना तो मैं एक्चुअली हाँ मैंने अपने 55 का ही ऐसा लगाया था कि 55 में जितनी भी क्वांटिटी रहेगी उसका एटलीस्ट आधा निकाल दूंगा, और 50 में अगर गया तो पूरा निकाल दूंगा। लेकिन बिकॉज यू गाइज डोंट फॉलो द रूल्स, मुझे पता है कि फिर मैसेज आते हैं लोगों की, सर मैंने कैरी कर लिया, जैसे पीवीआर का कॉल था एक सर, एक आप में से कोई फॉलोअर है उन्होंने उसको कैरी कर लिया, तो अच्छा है कि अगले दिन फेवर में गया, है ना। तो ये चीज वो अलग मैटर है, तो इसलिए मैं उतना ज्यादा फिर थोड़ा सा बफर लेके चलता हूँ, इसलिए 40 का मैंने एसएल लिया था। अदरवाइज आई वाज वेरी सर्टेन, क्योंकि 1540 का अराउंड पे एचडीएफसी ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, और वहां से इसको रिटर्न होना था, 1540 के नीचे ही रहना था, और ऐसे ऐसे ही का यही था। तो इसी कारण से फिर बैंक निफ्टी में भी वही चीज हुई, यहाँ से जैसे ही अपन ने टारगेट दिया, मतलब ट्रेड लिया, ये नीचे आया, और उसके बाद मेरा ये था कि आई वाज, दिस इज फ्यूचर चार्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। सो आई वाज, ये जो लाइन थी ये मेरी ड्रॉ, ये लाइन मैंने आज नहीं ड्रॉ की, ये लाइन कल भी नहीं ड्रॉ की, ये लाइन जो पिछली बार जब एनालिसिस किया था, जब भी सर मंडे मंडे किया था, तब से लाइन ड्रॉ है, ठीक है। तो ये चीज मुझे पता, जैसे ये लाइन को ब्रेक किया फिर आई वाज, मैंने बहुत टाइट ट्रेल करना चालू कर दिया, क्योंकि मैं दूसरों को लॉस नहीं कराना चाहता था आप लोगों का, कि मैक्सिमम प्रॉफिट आया है उसको कैप्चर करेंगे। हालांकि इसलिए अपना 90 में हिट हुआ, अदरवाइज वो 130-20 तक गया था वो अपना पुट जो भी था। आप देख सकते हो कि दिन भर में ये एक बहुत अच्छा मूव था, उसके बाद एक और मूव यहाँ पे आया था, ठीक है, और उसके बाद फिर ये स्टैग्नेंट हो गया। क्योंकि जो ऐसा होता है बैंक निफ्टी में, मतलब जो चीजें, जो ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, उनका पोजीशनिंग इसी अराउंड पे था, 38,500 के अराउंड पे था, तो वो इसी अराउंड पे क्लोज कराना चाहते। देखो 400 470 पे क्लोजिंग हुई है, तो ये यही वो चाहते थे, और ये वो सुबह ही ले आए थे, तो बहुत ज्यादा कुछ था नहीं उसके बाद सेकंड हाफ में मूव करने के लिए। सो इसके बाद जब यहाँ से बाउंस मारा ना और इस टाइप की कैंडल बनने लगा, मैं समझ गया कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ कुछ बची नहीं है बैंक निफ्टी में। तो ये चीज है गाइस, ओवाई डेटा रीड करना आना चाहिए, उस चीज को आप साथ में वो करके करोगे, प्राइस एक्शन को साथ में ऐड करोगे, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी ऐड करोगे, तो फिर आप ले सकते हो ट्रेड। मैनुअली ड्रॉन हैव, हेमंत इज आस्किंग कि सर हाउ आर यू गेटिंग दोज ब्लैक लाइंस ऑन ट्रेडिंग व्यू चार्ट। आई हैव ड्रॉन देम मैनुअली, ठीक है, वो प्राइस एक्शन एनालिसिस जब करते हैं ना तो उसका पार्ट है, ठीक है, उसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो उसमें फ्री लाइंस ड्रॉ होती हैं। ये लाइंस आप देख सकते हो, इसमें रेजिस्टेंस देखो, ये मैंने ड्रॉ किया था, ये 11 तारीख के बाद की बात है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से रिटर्न है, यहाँ से रिटर्न, यहाँ से रिटर्न है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। 38,500 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, आपको ही पता है 38,500 बहुत बड़ा लेवल है। तो अब देखो यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना बनता है ना। आप देखो यहाँ पे फिर से यहाँ से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ से नीचे आया, ये सारी चीजें हैं गाइस, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी आप देख लो सब, चलो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अभी आपके सामने करके बताता हूँ मैं, ये आप लाइन ड्रॉ करके देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, सॉरी, ये लाइन ड्रॉ करो आप, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे ये देखो, ये यहाँ पे एक बार यहाँ से रिजेक्शन मिला इसको, ठीक है, कहाँ गया मेरा पेन, ये, तो यहाँ से रिजेक्शन मिला, एक बार यहाँ से रिटर्निंग हुई, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो ये लेवल यहाँ तो बायर सेलर बैठे हैं, ये लेवल को फिर से इन्होंने रिस्पेक्ट दिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से फिर नीचे आया, तो ये चीजें होती है। आप अगर इवन जैसे पूरा वाई डेटा पे काम नहीं भी करते, सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करते हो, तो भी ये चीजें आप देखना, ये लाइन भी यहाँ पे भी एक ड्रॉ हो जाएगा। तो ये चीजें रहती है इमीडिएट, आप जिस भी ट्रेड में हो उसका इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना पड़ता है, आप उसको समझना पड़ता है, तब जाके ट्रेड होती है। यस, रजत इज आस्किंग कि कॉल वाई पुट वाई देखकर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। आई डोंट नो रजत, आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है, शायद आप बता रहे हो कि ऐसा होता है, तो यस ऐसा होता है, उसको देख के पता चलता है, टारगेट एसएल सब पता चल जाता है वही डेटा देख कर, क्योंकि हम भी वही टारगेट रखेंगे ना जो बड़े लोग अपना टारगेट रख रहे हैं,
ओके रजत इज आस्किंग, थैंक यू थैंक यू, मतलब इट्स ओके। सो आप, हम भी तो वही टारगेट रखेंगे ना जो बड़े लोग अपना टारगेट रख रहे हैं, जो लोग वहां तक मूव करना चाहते हैं हम भी वहीं तक मूव कराएंगे, है ना, अपना वहीं तक ट्रेड मैनेज करेंगे। प्रेम सिंह इज आस्किंग कि ट्रेलिंग एसएल कैसे रखते हो, ट्रेलिंग एसएल। अरे प्रेम सिंह, आप क्या टेंशन ले रहे हो, आपको तो वेबिनार में सब चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो क्या चिंता कर रहे हो आप, है ना। ट्रेलिंग एसएल के बारे में बहुत बार बता चुका हूं मैं, आप लोग प्लीज समझो इस चीज को, पिवट के बेस पे ट्रेल किया करो। जैसे आज बहुत ज्यादा ट्रेल करा था, बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, इमीडिएटली बहुत क्लोजली ट्रेल कर, इसका एक्सपीरियंस है गाइस, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा, किसी दिन समय मिलेगा तो वेबिनार ले लेंगे इसके ऊपर में, है ना। थोड़ा सा एग्रेसिवली, कभी आपको एग्रेसिव करना पड़ता है, कभी आप कंजर्वेटिव होते हो, वो चीजें डेटा किस तरीके का रहता है ना वहाँ पे, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ओके गाइस, आई थिंक दैट वाज ऑल। अभी कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ बताइए। ट्रेडिंग जर्नल के बारे में नागेश का क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट ट्रेडिंग जर्नल, इसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आप देखना। अभी फिलहाल एक चीज, ट्रेडिंग जर्नल ना, आप एक काम करो, कुछ मत करो, डायरी उठाओ एक कोई सी भी, उसमें आप जो चाहो वो लिखो, ठीक है। आप समझो कि वो डायरी आपकी फ्रेंड है, आप उसको उसमें सारी चीजें लिखो, तब जाके आपको ना समझ में आएगा। अगले दिन जब आप उसको रीड करोगे ना, तो आपको जो गलतियां आपने की कि ये गलती मुझे नहीं करनी है, जो चीजें आप सही की है कि ये चीज सही किया मैंने, आप कोई ट्रेड, ठीक है। एक और चीज आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता के जाता हूँ वो ये है, कोई भी ट्रेड आप इनिशिएट करते हो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे रीजन होना चाहिए। कोई अगला इंसान आपसे पूछता है, या इवन आप खुद अपने आप से पूछते हो कि ये ट्रेड मैंने लिया तो क्यों लिया, तो आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ऐसी मजे मजे में वो ट्रेड ले लिया, ठीक है, मुझे लगा कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा इसलिए मैंने ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बैंक निफ्टी नीचे, आज बेरिश लग रहा है बैंक निफ्टी तो पुट खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट टाइम होता है, उसका कोई लॉजिक होता है क्यों यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, ठीक है। आप वो पैसा अगर आप किसी चीज पे लगा रहे हो तो उसके पीछे 10 चीजें सही करोगे तब जा करके आपको 1 रुपये मिलता है। तो वो चीज होनी चाहिए, हमेशा लॉजिक के साथ में काम करो। जैसे आप लोगों ने पूछा, मैंने बताया कितना बहुत सारा इसके पीछे एनालिसिस था, बहुत सारा स्टेट, इससे एल आई सी में भी यही चीज थी, एल आई सी में एक अलग कंसेप्ट था, वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें थी, इस टाइप का काम आप लोग करो। हमेशा ये होना चाहिए कि कोई भी ट्रेड लो ना आप, चाहे दिन में 10 ट्रेड लो, चाहे एक ट्रेड लो, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए कि मैंने इस चीज को बाय किया तो क्यों किया, यहाँ पे बाय किया तो क्यों किया। तो ये सारी चीज आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखोगे, तब जाके आप उसको फिर रिफाइन कर पाओगे, ठीक है। दैट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। आप उसको रिटर्न में लिखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग भाई इंडियन सिस्टम के लोग हैं, हम लोग जो है इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंडियन मिडिल क्लास हाई क्लास डजेंट मैटर, हम लोग इंडियन स्कूल से पढ़े हैं, हम लोगों ने लिख लिख के चीजें सीखी हैं, ठीक है। फॉरेन में भी ये चीज होती है, लेकिन लिखना हमको, वी आर इमोशनली कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन ए पेपर, ठीक है। हम लोग 90s के किड्स, हाँ, या इंडियन से ज्यादा हम लोग 90s के किड हैं, तो हम लोग ने हर चीज को लिखा है, ठीक है। तो लिख लिख के आप पढ़ोगे तो सब ज्यादा समझ में आता है। तो आप जब लिखोगे ना अपनी गलतियां, ठीक है, आप जब लिखोगे, आज ही जाना आप लोग एक डायरी उठाना, कोई सी पुरानी नहीं, उससे मतलब नहीं है, उठाना। और जब भी आप उस डायरी में लिखो ना, आप मेरे को एक बार जरूर याद कर लें कि सर ये बोल रहे थे, तो सर ये बोल रहे थे कि कुछ भी लिखो और रीजनिंग्स लिखो कि क्यों मैंने ट्रेड लिया, चाहे सही ट्रेड लिया गलत ट्रेड लिया उससे मतलब नहीं है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो अलग चीज है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। मैंने बताया ना, पैसा आज है कल नहीं है, कल फिर है परसों नहीं है, उसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन आपका नॉलेज आपके साथ रहेगा, तो वो नॉलेज आपको तभी मिलेगा जब आप लिखना चालू करोगे, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली लिखो उसमें, और डेली लिखो, तब आप धीरे धीरे अपने आप को खुद ही इंप्रूव कर लोगे, ठीक है। और यही सारा जो प्रोसेस है कि ये जर्नल वाला और ये सब वाला मेहनत, इसी को कट शॉर्ट करने के लिए ये वेबिनार बनाया है। 4 दिन आप सीरियसली वेबिनार अटेंड कर लोगे तो आपका लगभग 2-3 साल की मेहनत जो है पूरी बच जाएगी, ठीक है। आपको जो चीज आप 3-4 साल 5 साल के बाद सीखोगे मार्केट को लॉसेस कर करके या एफर्ट डाल डाल के, वो मैं आपको 4 दिन में सिखा दूंगा। ये मेरा एम है, इस वेबिनार का। ओके, Amit is saying thank you very much, sir. Thank you so much, Amit, for giving me your time and the feedback. Nagesh is saying thank you. Thank you so much, Nagesh. There are some questions. एक बार और 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसको डील कर लेते हैं फिर फिनिश करेंगे। राघवेंद्र इज आस्किंग, सर विक्स कंफ्यूज करता है सपोर्ट स्ट्रिंग ड्राइंग में, विक्स ले या नहीं ले, आई डोंट नो, मतलब सपोर्ट स्ट्रिंग ड्रॉ करने में विक्स का क्या काम है। अच्छा विक्स, वो अच्छा वो वाले विक्स, मैं इंडिया विक्स की बात कर रहा था, ये मेरे को लगा ये विक्स की। नहीं, विक्स को देखो, आपका एक सिंपल रूल है, उतना मत सोचो, आप एक लेवल पे ड्रॉ करो, ठीक है। वैसे तो जब मैं ड्रॉ करना वेबिनार में सिखाता हूँ ना, तो मैं ओआई बेस्ड, सपोर्ट टेस्टिंग भी हमारा ओआई बेस्ड रहता है, ड्राइंग भी हमारी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर पे बेस्ड रहती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ओआई हमारे क्लियर करती है।
लेकिन अब मान लो वाई नहीं डील करते हो, आप प्राइस एक्शन पे ही जाना चाहते हो, तो आप इस चीज को समझो कि यार जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे लाइन ड्रॉ करो ना, ठीक है। ये यहाँ एग्जैक्ट ये वीक को लो कि इस बॉडी को लो, उस पर उतना मतलब नहीं रहता। आपका एक एवरेज मैक्सिमम पॉइंट कवर होने चाहिए, ये है ये है ये है मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे कवर होना है। वैसे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है एक रीजन होता है, एक एग्जैक्ट लाइन नहीं होती। जैसे यहाँ पे 646.70 है, ये नहीं है, ठीक है। ये 650 भी हो सकता है, 640-45 भी हो सकता है। तो एक रीजन है, उस रीजन पे लेना है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करते हैं, तो उतना ज्यादा आप टेंशन मत लो कि विक लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। रजत इज सेइंग थैंक्स सर फॉर योर वेबिनार, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच रजत, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। ओके, तो यही तो है, और क्या है इसके अलावा, और रखा ही क्या है ना। आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, यही चाहिए। एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि फ्यूचर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट और ऑप्शन कोई, और सब देखना पड़ता है, ठीक है। सारी चीजें सारी चीजें देखनी पड़ती है। फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है, और ऑप्शंस का भी क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ता है, तब जाके ट्रेड बनता है। फ्यूचर का अपना अलग काम है, ऑप्शंस का अलग काम है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करते हैं, तब जाके डेटा फिर बनती है, ठीक है। शब्द रजत ने लिखा है कि लिखते हैं सर, अब तो बिल्कुल लिखना है, ठीक है। जब भी लिखेंगे मुझे एक बार जरूर याद करेंगे। वो कहते हैं दुआ भी याद करना, वैसे ही है। जब भी आप ट्रेडिंग जर्नल लिखेंगे मुझे याद करेंगे। ऐसा होता है गाइस, एक चीज और बता रहा हूँ, दुख में सुमरन सब करे वाली बात है ना, तो वही चीज है। जब लॉस होता है ना सब लिखते हैं, उसके प्रॉफिट होता है तो कोई नहीं लिखता है। या यहाँ उल्टा होता है, सॉरी आई एम सॉरी, कि वो प्रॉफिट होता है तो सब लिखते हैं कि आज मैंने ये सही किया तो प्रॉफिट हुआ, ऐसा ऐसा। लॉस होता है तो नहीं लिखते हैं गाइज। बिल्कुल दोनों में लिखना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। वही आपको हेल्प करेगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कोई चीज मान लो प्रॉफिट बनता है आपका ना, तो उसमें ना कुछ लक का भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कई चीजें लक पे भी काम करती हैं, तो आप उस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि क्या चीज लक की वजह से चल रहा है, और क्या चीज जो है उसकी वजह से चल रहा है। मतलब आपका खुद के एनालिसिस, जैसे आज का ट्रेड था बैंक निफ्टी का, प्रॉपर एनालिसिस बेस्ड था, तभी वो ट्रेड काम किया है। तो वो चीजें आपको समझ पता होनी चाहिए कि इस चीज की वजह से है। सारी चीजें लिखेंगे आप उसमें। एंड अप्रिशिएट योर टाइम इन शेयरिंग योर नॉलेज, थैंक यू थैंक यू। एंड इट्स मोर देन, मतलब आपका टाइम मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके पहले एक और क्वेश्चन। एनी प्लान्स ऑफ गोइंग फुल टाइम ट्रेडिंग? आई मतलब मैं तो वैसे अभी भी फुल टाइम ही हूँ, क्योंकि ये कोविड की वजह से कोविड की वजह से घर पे ही हूँ। लेकिन मैं जानबूझ के मार्केट से बाहर रहता हूँ, ठीक है, बीच में, है ना। ऐसे तो आज थोड़ा काम था, लेकिन अक्सर मैं मार्केट से, जो ये बीच के 1-1.5 घंटे में मार्केट से बाहर रहता हूँ। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये मार्केट का टाइम पीरियड है ना, ये आपका बीच वाला टाइम पीरियड, ठीक है, ये 11 से लेकर के 1-1:30 बजे तक का ये टाइम पीरियड में ना वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। तो एज एन ऑप्शन बाय ना, मेरा काम वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, नहीं तो फिर मैं फंस जाऊंगा पोजिशनिंग में, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। इसलिए अब देखना, मेरे ट्रेड जो है या तो अर्ली मॉर्निंग रहते हैं या फिर लेट आफ्टरनून रहते हैं, बीच में अपना कुछ काम नहीं है उतना, ठीक है। आप देखो ना, यहाँ पे देख लो, ये मूव आ रहा है, अच्छा मूव आ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा स्टेगनेंट हो जाता है। यहाँ पे भी देखो, हालांकि ये बैंक निफ्टी है, दिन भर मूव देते रहता है, लेकिन दूसरी चीजों पे, स्टॉक्स वगैरह पे कई देखना, स्टॉक बीच में कंसोलिडेशन रेंज में चले जाते हैं, तो वो चीज मुझे नहीं चाहिए। डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छे से क्लियर होता है। अब बैंक निफ्टी तो अभी 10 दिनों से एकदम डायरेक्शनल ट्रेड दे रहा है, तो उसको छोड़ते हैं। कोई और देख लो, कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि बीच में उतने मूव नहीं आते हैं। जो भी मूव, बड़े बड़े मूव आते हैं, कि एकदम मतलब जो एक यूनिडायरेक्शनल मूव आते हैं, वो लास्ट में ही आते हैं, ठीक है। तो वो लास्ट का मूव कैप्चर, जैसे इसमें डेल्टा में आया है ना, ये कंसोलिडेशन में चल रहा था, तो ये सब चीजें आपको कैप्चर करनी है guys। तो इसलिए बचना रहता है, इसलिए मैं बीच में वो नहीं करता, ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि सर मेरी वाइफ इंटरडे नहीं करने देती है, लॉस हो जाता है, फिर वो देख लेती है, आप कुछ बोलिए ना, वो सुन रही है तो ठीक तो करती है। लॉस नहीं करना है ना मार्केट में, पैसा बचाना है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, आप नॉलेज के साथ में करिए, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। आज वो आपके अगेंस्ट में है, जिस दिन आप प्रॉफिट लेके आओगे आपके सपोर्ट में होंगे। आपको बता रहा हूँ, राघवेंद्र इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो राघवेंद्र का तो मतलब मैं बता रहा हूँ सर, दुनिया में सबसे बड़ा जो पावरफुल चीज है ना, वो पैसा है, ठीक है।
पैसा आप लेके आते हो घर पे तो आपसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है कि आप इंट्राडे करके ला रहे हो, फ्यूचर्स करके ला रहे हो, ऑप्शन करके ला रहे हो, इन्वेस्टिंग करके ला रहे हो, या कुछ स्टॉक ऑप्शन मतलब वो बाय करके ला रहे हो या स्टॉक्स बाय करके ला रहे हो। पैसा आना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट ये है। आप सीखिए अच्छे से, उसका सही तरीके से ट्रेड लीजिए, वाइफ को जाके दिखाइए आज मैंने 1 लाख बनाया, आज मैंने 10 लाख बनाया, वो फिर खुश हो जाएंगी वो। ओके। एंड रजत सर की वाइफ की सुनिए, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो लास्ट चीज मैं ये बोलना चाह रहा था गाइस, ठीक है, ये चीज मैं अपने हर वेबिनार में बोलता हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे इस बात से बहुत ज्यादा अब तो रिपीटेड हो जा रहा है, लेकिन स्टिल कि पैसा सेकेंडरी है, ठीक है, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। वाइफ की बात आ गई इसलिए हमेशा फैमिली को इंपॉर्टेंस दे के रखेंगे, ठीक है, फैमिली हो चाहे आपके पेरेंट्स हों, बच्चे हों, आपकी शादी नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, सब आपके जो भी लव्ड वंस हैं उनको इंपॉर्टेंस हमेशा देके रखेंगे। मार्केट, बिकॉज वी आर ट्रेडर्स गाइस, तो ट्रेडर कम्युनिटी में ये चीज होती है, मार्केट के चक्कर में ना हम लोग बहुत चीजें हो जाते हैं, बहुत चीजों से मतलब कट जाते हैं। दिन भर तो हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, उसका फिर एनालिसिस होता है और ये चीजें, और उसके बाद भी सारा मेहनत करने के बाद भी मान लो लॉस जाता है हमारा, ठीक है, मान लो हम आज एक्सपायरी में मान लो हमारा लॉस हो गया, तो फिर वो लॉस ये नहीं होना चाहिए गाइस। लेट्स मेक दिस पैक कि आप जो अभी अपना लॉस है या जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो अपने घर वालों के ऊपर नहीं निकालेंगे, ठीक है। जो हुआ है वो डिसीजन आपका था, ट्रेडिंग में आने का डिसीजन आपका था, प्रॉफिट हुआ आपका, लॉस हुआ आपका, ठीक है। तो इसलिए उसको आप सेपरेट मत करना घर वालों पे, ठीक है, क्योंकि वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं कि बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर लॉस, उनकी वजह से आपका लॉस नहीं हुआ ना, तो इसलिए आप प्लीज उनके ऊपर ये चीज कभी नहीं करना। प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली दे आर पार्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। जो आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो एंगर है, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। साइकोलॉजी देखो, एक चीज और समझा रहा हूँ यहाँ पे, साइकोलॉजी से भागो मत, ठीक है। आप कभी भी ये मत सोचो कि ट्रेडर हो तो आपके अंदर इमोशन नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली वो क्वालिटी होती है, इमोशन कंट्रोल करना आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आप इंसान हो तो इमोशन तो आएंगे, है ना। अगर आपको कोई ये बोलता है कि नहीं आप इमोशन कंट्रोल कर रूथलेस हो सकते, तो नहीं हो सकते, आप इंसान हो, आपको इमोशन तो आएंगे। आपको जब पैसा बनेगा तो खुशी लगेगी, पैसा नहीं बनेगा तो दुख लगेगा, है ना। उस चीज को, लेकिन सारे इमोशन को प्रोसेस करना आना चाहिए, ठीक है, वो आप एक्सपीरियंस से समझ जाओगे और एक्टिवली उस चीज पे ध्यान दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर लव्ड वन गाइस, बिकॉज वी आर इन middle of a global pandemic and we are in such a serious situation the world is facing right now. So इस पूरे टाइम पीरियड में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी ट्रेड डू वी जनरली गेट इन द यू गेट ट्रेड एवरी सेकंड, ठीक है, स्कैनर तुरंत आपको स्कैन कर दे रहा था, वो तो आपके ऊपर है कि आप उसका डेटा कितना रीड कर पाते हो या नहीं, है ना। जब तक मार्केट मूव करेगा तब तक ट्रेड बनता है, ठीक है। देखो एशियन पेंट्स यहाँ पे आज फॉल हुआ इतना अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेड था। अल्ट्रा सीमेंट में भी ट्रेड रहा होगा, देखो ये फॉल हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड था, ठीक है। यूपीएल में ट्रेड रहा होगा, यहाँ पे ट्रेड था, तो ट्रेड तो हर जगह बनते हैं, आपके ऊपर है कि आप कितना, स्कैनर आपको कैच करके देगा, स्कैनर अपना काम करेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना रीड करेंगे, कितना आप मेहनत कर पाते होंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिन भर कंप्यूटर में काम करते करते मतलब इसको स्कैन किया उसको किया तो मेरे हाथ उंगलियां दुखने लग जाती हैं, ठीक है, तो इतने भी ट्रेड मिलते हैं। तो वो आपके ऊपर है, मार्केट तो तैयार बैठा है आपको पैसा देने के लिए, आपके ऊपर है कि आप उससे ले पाते हो नहीं पाते। यस, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजी का, लेकिन साइकोलॉजी को आप जितना ज़्यादा कम करोगे ना उतना अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल साइकोलॉजी पे इस चीज इस टाइप से वर्क करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लोगों का ये रहता है कि साइकोलॉजी पे ही पूरा सारा का सारा चीज साइकोलॉजी, नहीं भाई, साइकोलॉजी पे नहीं, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसके अलावा और भी सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए ना जो कि साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा निकाल दे। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे पुल बैक आ रहा है, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है, साइकोलॉजी का पार्ट ही नहीं। जैसे आज का ही ट्रेड लो, बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, आप भाई 40 रुपए का मतलब 20 रुपए का एसएल था, एक लॉट में अपने को 20 रुपीज का एक क्वांटिटी में लॉस हो रहा था, ठीक है। उसको अपन ने इमीडिएटली ट्रेल कर लिया, 60 रुपए में बाय किया था, जैसे ही वो गया 70 उत्तर में अपन ट्रेल कर लिया, उसका 60 में लाया, 60 में लाया तो फ्री हो गया ना। फिर हम उस ट्रेड में एक भी रुपया लूज नहीं करेंगे, तो ये चीज होनी चाहिए आपको इस टाइप। आप आज के ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अपन ने कितना पैसा बनाया उसमें, 90 रुपीज बनाया है अपन ने, ठीक है, और उसके बाद अपना रिस्क कितना था, 20 रुपए का, तो 1.5 का हमारा एसएल जा रहा है, 1.5 का सॉरी रिस्क रिवॉर्ड जा रहा है, हालांकि वो बहुत ज्यादा था। उसके बाद वो बहुत मूव किया, 130 तक गया, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, वो मेरा क्रेडिट नहीं है, मैं तो 90 तक ही बताया था। तो वो चीज है ना गाइस, तो इस टाइप का होना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए, आपका हिट रेशियो होना चाहिए, आपका एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो जितना ज्यादा आप अपना सिस्टम एज के साथ डेवलप करोगे, आपके सिस्टम का एज होना चाहिए, जैसे मेरे पर्टिकुलर सिस्टम का एज है डायरेक्शन, ठीक है।
आई हैव इम्पेकेबल सेंस ऑफ डायरेक्शन एज फार एज द डेटा। अगर डेटा ही चेंज हो जाएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। डेटा ही चेंज हो जाएगा, अगर बड़े लोगों का पोजीशनिंग ही चेंज हो जाएगा, लोग सोच रहे थे आज यूपीएल को ऊपर लेके जाएंगे, कल नीचे लेके आएंगे, तो फिर मैं क्या ही कर पाऊंगा, है ना। तो उसमें डेटा भी दिख जाएगा, मुझे ट्रेड से एग्जिट होना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका ये है कि नहीं यूपीएल को लेके जाना है ऊपर और जाना ही जाना है, तो वो मुझे डेफिनेटली पता चलेगी। तो डायरेक्शन सेंस मेरा है बहुत अच्छा, मेरे जो सिस्टम का डायरेक्शन, दैट्स माई एज। इसलिए फिर अगर मेरा डायरेक्शन सही है ना, तो फिर उसको कैप्चर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में आप देखो 60 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी थी, वो चीज वो 130 40 160 तक भी गई थी आई थिंक, बाद में उसके बाद मैं ट्रैक ही नहीं किया। तो आपको 2 से 3 गुना हो जा रहा है विद इन मिनट, है ना। उतना आप इन्वेस्टमेंट में कहाँ बना पाओगे, सोचो। मल्टीबैगर पकड़ने के लिए आपको कितना 10 साल 5 साल लग जाएगा। तो है ना, कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको भी पता है रियलिटी क्या है, ठीक है। तो उतना पेशेंस नहीं है हमारे पास कि 10 साल वेट करें ये सब चीजें। इसलिए द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू कैप्चर द मूव इज ऑप्शन बाइंग, क्योंकि सेलिंग में भी उतना मार्जिन, मतलब मार्जिन जितना मार्जिन लगता है उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिलता, इन बाइंग में बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो फिर आप बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। आप डायरेक्शन इज माई एज। ओके, तो ये चीज आपको भी करनी है। साइकोलॉजी पे उतना ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जब तक आपके अंदर सांस चलेगी तब तक साइकोलॉजी आपके अंदर है। यू कांट टेक आउट द साइकोलॉजी फ्रॉम यू। ओके, यू कांट डू दैट। ओके, इफ यू आर, आप बस ये सोचो कि नहीं और किसी चीज पर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी स्टडीज पे मेहनत नहीं कर रहे हो, आप अपने सिस्टम को डेवलप नहीं कर रहे हो, आप अपना एज डेवलप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ साइकोलॉजी पे काम करना चाह रहे हो कि नहीं मैं लंबा खींचूंगा, मेरे विनर्स को बड़ा लेके जाऊंगा, लूजर्स को कट शॉर्ट, तो वो आप फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आप इंसान हो, इस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। जब तक आप सिस्टम में ट्रेड नहीं करते, या तो फिर आप एल्गो बना रहे हो तो अलग बात है, लेकिन आप खुद से ट्रेड करते हो तो फिर साइकोलॉजी तो आपके साथ चलेगी, ठीक है। बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनका भी लॉस होता है, ऐसा नहीं, उनके पास क्वांटिटी ज्यादा रहती है, ठीक है, वो लोग लाइक बहुत ज्यादा 10,000 20,000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, 50,000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, उनका प्रॉफिट ज्यादा आता है, लेकिन साइकोलॉजी तो उनकी भी उतनी ही रहती है गाइस, है ना। मनी कृष्णा इज सेइंग ही होप्स कैनाडा डज मोस्ट ऑफ द, यस दैट विल डू द जॉब। एनी बुक्स यू रीड ऑन इन्वेस्टिंग, बिल्कुल वहाँ जो बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग है वहीं से स्टार्ट करिए आप, ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए। बेंजामिन ग्राहम की जो बुक है उस पे, अरे वॉरेन बफे की बुक का क्या नाम है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ओके, दैट वाज द माय फर्स्ट बुक। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मेरा ट्रेडिंग से ये था कि ट्रेडिंग से जो पैसा बनेगा उसको इन्वेस्टिंग में लगाऊंगा। तो जो मैं पहला जो इनकम आया था, पहले जो कमाई आई थी, उससे मैंने वही बुक मंगाई थी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है, उसको मंगाया था। हालांकि मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, बट वो बहुत अच्छी बुक है ना। उसमें एक्चुअली में यही चीज़ें बताई है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद फिर अब वो हाउ आई मेड लाइक $2 million 20 million से 2 million है आई थिंक फ्रॉम स्टॉक मार्केट, डारवास की बुक है, वो भी पढ़िए। ये सब चीजें हैं, है ना। तो ये सब पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। रेडी डन तो फिर और क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करिए फिर। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप, अगर आप इन्वेस्टर हो, अंकुश इज आस्किंग कि हम इन्वेस्टर है, तो आप फिर कॉन कॉल सुनिए लोगों कंपनीज के, और कंपनियों की रिपोर्ट पढ़िए, है ना। हमें तो रिजल्ट से बस मतलब रिजल्ट कब आ रहा है, आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपको रिजल्ट से भी मतलब है रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो वो चीज आप देखिए, स्टॉक एज डज नॉट हैव द लाइव डेटा ऑफ ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। यूडी डेटा बस रहता है, लाइव नहीं रहता। लाइव के लिए हमें आई चार्ट्स में जाना पड़ता है। टेन लाइन और चार्ट कितना है, टेन लाइन और चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेन लाइन और चार्ट के, टेन लाइन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेन लाइन में उतना ड्रॉ नहीं करता, चार्ट को देख के ही तो समझ में आएगा, है ना। तो मैं ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करता हूँ, मेरा काम सिर्फ इसी में हो जाता है। आप लोग देखना, कभी भी मैं ट्विटर में कोई भी कॉल देता हूँ तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ, एंट्री एग्जिट टारगेट यही सब रहते हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ही मेरा काम चल जाता है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो डीएम में आप पूछ सकते हो, ठीक है। वेबिनार से रिलेटेड कुछ चीजें हो तो ईमेल कर सकते हो, पूछ सकते हो डीएम में। पेमेंट वगैरह का कोई इशू हो तो फिर उसमें बात कर लेंगे, ठीक है। आशीष इज आस्किंग ऑल्सो, आई वाज इन मीटिंग यस्टरडे, यूज योर मेथड टू रिकॉग्नाइज कोलपाल व्हेन टुडे, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच आशीष, आपने मेरा मेथड यूज किया और पैसा बनाया, दैट्स वेरी गुड। ओके, थैंक यू। आशीष बजाज, या यू आर यू माई लाइक, आप मेरे वेबिनार अटेंड कर चुके हो पहले कि नहीं? yesterday was first, okay, 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 no problem. Okay, thank you guys, thank you so much.
Have a nice day. Thank you so much for joining me. Now I'll be sending confirmation email to all of you who have paid. बहुत सारे लोगों का पेमेंट आ चुका है, मेरे ख्याल से अब सीट्स फुल होने वाली होंगी क्योंकि एक लिमिटेड ही रखना है, अदरवाइज थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए. सो अगर आपको अब में से किसी को भी ज्वाइन करना होगा तो प्लीज़ यू कैन, अदरवाइज विल बी क्लोजिंग द रजिस्ट्रेशन टू वेबिनार टुमारो. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग. होप आई वाज यूजफुल एंड थैंक यू सो मच. those who are seeing this on YouTube, please leave a comment. ठीक है, एटलीस्ट लीव ए कमेंट, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और क्या चीज़ों पे आप डिस्कशन करना चाहोगे वो देखेंगे. आगे से हम YouTube लाइव लेंगे गाइस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अटेंड कर सकें. एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. हैव a nice day. Okay. Okay, last question. Pradeep is when is the next webinar? I might next webinar अभी रिसेंट में तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, फेब में तो एटलीस्ट नहीं प्लान है मेरा. उसके बाद देखते हैं, अगर आप चाहो तो अभी ज्वाइन कर लो. आप वीडियो देख लेना, यूट्यूब रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही, आप पूरा वीडियो देख लेना. ठीक है, और उसके बाद जो भी डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर करूंगा. वो डाउट सेशन तो बार बार होते रहते हैं, है ना. तो अगर आप नहीं अटेंड कर पाते हो लाइव में, तो भी जब आप लोगों को जो भी कन्वीनियंट रहेगा, किसी संडे को बैठ के डाउट क्लियर करें. कुछ भी डाउट होगा ग्रुप में तो पूछ ही सकते हो, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, है ना. तो दिस इज द थिंग. क्यू फैब में शायद ही होगा और वेबिनार अभी एटलीस्ट काफी दिनों तक. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. KD is saying, sir, I missed. Don't worry, KD. I'll upload this in YouTube. There you can see. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Okay.